good afternoon, all the members. Our speaker for today's session, CA Dr. Gaurav Gupta, is already amongst us. He is a fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India, a law graduate from Delhi University, and DISA from ICAI. He is an alumni of Shri Ram College of Commerce. He has to his credit numerous articles which have been published across various reputed journals, magazines. Recently, he has been elevated as the executive member of Sales Tax Bar Association, and he deserves accolades for this. He has also actively contributed as a member in various committees on indirect taxes of various forums. He is also faculty to indirect tax courses of ICAI, having addressed various conferences, seminars, pan-India, organized by various professional bodies and associations on service tax and now GST, all across India. He has also worked in Tier 1 consulting organizations and also has experience in industry as the group tax head. He has a vast experience of more than 20 years in opining clients on complex indirect tax matters and has represented clients in inquiries, surveys, and appeals. So with such an illustrious background, not only in academics, but in practice as well, particularly in indirect tax matters, we are pleased to have him amongst us to listen to him, not only on indirect tax proposals, but also on the recent changes and particularly recent rulings by various adjudicating authorities. So with this, it is all yours, sir. CA Dr. Gaurav Gupta ji. Because 42 people have already joined, I think we can start the meeting now. तो आप unmute कर लीजिए sir अपने को. Please unmute yourself. Sir, I have unmuted myself. Okay, yes. Thank you, sir. And I have made you the presenter now. Thank you, sir. I will not. Yes, please. Thank Trinagar Study Circle, specifically Gupta ji, Bharadwaj sir, all the members for sparing their valuable time and be with me on the knowledge session. Members, before we begin, I would also like to in person congratulate Gupta sir. He has always been a guidance to many young members. And I just saw a Facebook post sir has mentioned that again there is a landmark which he has crossed. Sir, थोड़ा सा 1-2 मिनट आप उसके बारे में हमें प्लीज बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ना फेसबुक से ज्यादा जब आप फेस टू फेस मिलते हैं तो जिज्ञासा बढ़ी हुई होती है. Sir, if I'm not wrong, it was about 58 years now. Yes. Now I will be completing 58 years very soon on this 21st of February. So just Yes, another week. And I'll be entering 59th year of my life. Sir, we are waiting for our party also, and we are always thankful for you. You have been voicing for the profession without, and I would say continuously, and which is very, very important today. The first thing, let me begin why this voicing from Gupta sir is very, very important. The 9C GST audit has gone, taken away from the hands of the professionals. The budget, one of the proposals which the Honorable Finance Minister presented by her, contained one provision that audit under 35(5) should go away under GST. Now, what was the whole problem with the system? Sir, I would request everyone if they can be put to mute. Thank you, sir. There is some noise which was coming. Thank you, sir. Sir, what was the whole intent of the government to do this? They were thinking that the audit was not contributing much to the government benefit and it was becoming a cost burden to the SSC. My dear friends, what I can just add at the beginning, government has failed to realize that whatever tax payment was going into 9 and not merely 9C was only on account of the audit done by the chartered accountants.
government, whenever it want to see the revenue addition, it should add up both 9 and 9C. 9 was not a self compliance by the taxpayers. It was on the guidance of the learned chartered accountant, and therefore the audit, it was just for the benefit of the client, the assessee, not for the cost benefit of the chartered accountant. ये एक बहुत बड़ा मिथ है। और दूसरा, सभी मेंबर्स बड़े परेशान है कि सर एक रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो कम हुई। सर मैं सबसे एक बात शेयर करना चाहूंगा, जरूरत क्लाइंट की थी, आपकी नहीं। ऑडिट उसके बेनिफिट का था, उसकी फ्यूचर लायबिलिटी को बचाता था। अब ये सारी की सारी जो एक्सरसाइज थी वो हटने के बाद जो सारा एक्सपोजर है वो किसके ऊपर आ गया? वो पूरा का पूरा असेसी के ऊपर आ गया है। आपको अपने क्लाइंट्स को ये बताना पड़ेगा कि जो अब सर्टिफिकेशन है वो कौन करेगा? सर वो करेगा डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कल को कोई भी लायबिलिटी आएगी तो उसके अंदर किसी भी प्रोफेशनल की कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। वो सीधा सवाल कंपनी से पूछा जाएगा कि सर आपने ये साइन करा था, आप टैक्स को सप्रेस कर रहे थे विद द इंटेंट टू इवेड द टैक्स, and therefore the person will be liable for taxation, interest and penalty. Just because of this particular audit, the errors were being ironed out. The assessee was getting a shield because the books were audited by a chartered accountant in terms of GST. So I don't think, my dear friend, this particular loss is to the profession. This particular loss is to the assessee, in my humble opinion. So this particular opportunity, it will definitely come back to the profession, not in the form of the audit, but in some other form. And I can tell you, recently everyone is aware, let me also share with you, GST के जो section 66 के audit है, उसकी applications कमिश्नरेट ने इनवाइट करनी शुरू कर दी है। सो दिल्ली के अंदर भी ओपन हो गए हैं। एवरी सीए हु इज इंटरेस्टेड, हु इज वर्किंग इन जीएसटी, ही इज मोस्ट वेलकम टू participate in that particular tender. I would rather say expression of interest, and you should contribute maximum to the best of your professional ability to the cause of the government, that yes, all the audits should be done in a perfect manner. My other side of saying this was, एक तरफ तो गवर्नमेंट ने कहा कि सीए के ऑडिट से जो है कुछ बेनिफिट हो नहीं रहा, दूसरी तरफ सीए को ही इनवाइट करके अब गवर्नमेंट ऑडिट भी हो रहे हैं। तो सर कहीं गवर्नमेंट की पोजीशन में भी कॉन्ट्राडिक्शन है। कहीं ना कहीं अगर यही ऑडिट सेक्शन 35 के तहत रहते तो बहुत स्मूथ तरीके से रेवेन्यू कलेक्शन हो सकती थी। दैट इज माय हम्बल सबमिशन। बट यस, प्रोफेशनल्स विल नेवर हैव अ लीन टाइम। हमने जो लास्ट के मेरे ख्याल से 4-5 साल में देखा, कंप्लायंस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। 7 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, 25, 30, मेरे ख्याल से एक महीने के अंदर, पहले प्रैक्टिशनर शायद 2 कंप्लायंस करता था, अब एक महीने के अंदर एक प्रैक्टिशनर 7 कंप्लायंसेस कम से कम करता है। तो ये जो कंप्लायंस बर्डन है, ये कहीं ना कहीं पे दिन पर दिन कंप्लायंस बर्डन जो बढ़ रहा है, इसको थोड़ा सा आप समझ के आराम से चलिए। The compliance burden has to be addressed in a very systematic manner. But let me first focus on the issues which are taken in the budget, apart from the this one, the 9C, GST 9C, my apologies. सबसे पहला इशू जो मैं टेकअप करना चाहूंगा, सेक्शन 7. सेक्शन 7, the definition of supply has been amended. अभी तो 3 साल भी नहीं हुए और सप्लाई की डेफिनेशन में 2 बार चेंज आ चुका है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज AA, it has been introduced, and what it has been introduced? It has been introduced retrospectively. Retrospectively from which date, sir? 1st of July 2017 it is proposed to be introduced, just to ensure one thing: the tax between the club and the members, or the societies and the members. क्या कहता है ये क्लॉज? क्लॉज AA, क्लॉज AA कहता है जो सोसाइटीज हैं, जो क्लब्स हैं, उनको उसने वर्ड दिया पर्सन। अब नाउ आई एम verbatim reading the insertion: the activities or transaction by a person other than an individual to its members or constituents, or vice versa, for cash, defer payment or other valuable consideration. I am again repeating, please
listen to it what very carefully. Activities or transaction by a person to its member or its constituents, or vice versa. Vice versa means from the members or constituent to that person, for cash, deferred payment or other valuable consideration. तो सर यहाँ पे दो चीजें हुई, एक तो पर्सन और उसके मेंबर्स के बीच की ट्रांजैक्शंस को इन्होंने टैक्स करने की बात करी, दूसरा there has to be a valuable consideration for that particular transaction. चलिए सर अगर ये क्लॉज यहीं तक होता तो मैं कहता चलिए कोई बात नहीं, शायद टैक्सेबिलिटी जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली रीइंफोर्स हो गई है, बट गवर्नमेंट ने इसके नीचे एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन और डाल दी, और सबसे बड़ी अगर मैं कहूंगा वो एक्सप्लेनेशन जैसे ही मैंने पढ़ी, मैंने कहा गवर्नमेंट ने रादर देन टैक्स लगाने के पूरा टैक्स ही हटा दिया, जो शंकाएं थी मन में सब खत्म कर दी, क्लब और मेंबर्स के बीच के टैक्स को खत्म कर दिया। कैसे करा सर? एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज AA, it is hereby clarified that notwithstanding anything contained, now please look into the non-obstinate clause which has been brought into such an elaborate manner. We don't find such a elaborate non-obstinate clause in any of the clauses, but it says not anything contained in any other law for time being in force. Why is it excluding any other law? Sir, it is particularly pointing out Income Tax Act. Why Income Tax Act? Because Income Tax Act supports mutuality. Further, or any judgment, decree or of any court, tribunal or authority. Why this was being said? Sir, this was being said because there was very recently, last year, there was a judgment of Honorable Supreme Court in the case of State of West Bengal versus Calcutta Club Limited, whereby the levy of service tax and VAT on the transactions of supply from the club to the members was struck down by the Honorable Supreme Court. I'll just come to that in a minute, but before that, उस पे आने से पहले let me close the explanation in totality. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any judgment, decree or order of any court, tribunal or authority, the person and its member or constituents, ये सारा notwithstanding किसके लिए किया गया? इस लाइन के लिए. The person and its member or constituents shall be deemed, underline the word deemed, to be two separate persons, and the supply of activity or transaction inter se shall be deemed to take place from one such person to another. Now sir, what has happened is there is a deeming fiction which has been evoked by the explanation. क्या deeming fiction evoke करी गई कि members और जो person है, जो उसकी main body है, they will be deemed to be two separate person. So इसका मतलब क्या हुआ सर? अगर ये deeming fiction नहीं होती तो फिर क्या वो दो होते? नहीं सर, वो एक ही होते. यही कहा गया था रांची क्लब में, यही कहा गया था जिमखाना क्लब में जब इनकम टैक्स के मैटर आए थे, और इसको हमने एक छोटा सा नाम दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी, कि मेंबर्स और क्लब जो हैं वो दो बॉडीज नहीं है, वो एक ही बॉडी है, और जो भी मेंबर्स पे कर रहे हैं क्लब में, दैट इज नॉट अ कंसिडरेशन, दैट इज व्हाट? कंट्रीब्यूशन. मैंने क्या करा, अब हम सब ने, अगर सपोज हम यहाँ पे आज 60 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इकट्ठे हुए हैं, हमने सबने क्या करा, हमने कहा कि चलिए हम इकट्ठे टैक्समैन से किताबें लेते हैं. तो हमने एक हर बंदे ने 1000 रुपए जो है कंट्रीब्यूट करे, 60,000 रुपए इकट्ठे हो गए. हमने गुप्ता सर से कहा सर इनकी किताबें जो है, उनकी किताबें आप ले आइए और हम सबको दे दीजिए. तो गुप्ता सर ने 60,000 रुपए की किताबें ली और हर सीए को एक जैसी किताबों का सेट दे दिया. तो सर जो काम गुप्ता जी ने किया हम सबके लिए, वो क्या हमने उनको कंसिडरेशन दी? नहीं, हमने कंट्रीब्यूट करा एक कॉमन कॉज के लिए, एक पूल बनाया और उसमें से बेनिफिट डिराइव करा. अगर मैं अकेला किताब खरीदने जाता तो मेरे को 20% डिस्काउंट मिलता, पर क्योंकि इकट्ठे हमने पूल करके गुप्ता जी गए थे, तो उन्होंने जो भी कंट्रीब्यूशन इकट्ठा किया, उससे जो भी पैसा इकट्ठा हुआ उससे हमें डिस्काउंट 40% मिला. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी. That is the concept of coming together for a common cause where we are not wanting supply from someone else. जो वो सप्लाई करेगा उस पर तो टैक्स लगाएगा, किताब वाले ने सप्लाई करी उस पर टैक्स लगना है तो लगेगा. Books are exempt, but let us say any other item. So
that particular person is a supplier, but inter se, whatever we have put in, there is no consideration, there is only contribution. And whatever money has gone to the central body and who is headed by that committee, it is merely a contribution collection and the benefits have been given back to the member. अब गवर्नमेंट जब वैट और सर्विस टैक्स के एरा के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चला और वो केस डिपार्टमेंट के फेवर में नहीं आया, तो अब जीएसटी के अंदर क्योंकि हमारे पिछले एरा का केस गवर्नमेंट हार गई थी, तो जस्ट टू कवर अप द न्यू एरा जीएसटी इस पर्टिकुलर क्लॉज को इंसर्ट किया गया। तो पहली चीज क्या इंसर्ट हुई, एक्सप्लेनेशन को मैं शुरू से आपके सामने रखना चाहूंगा। एक्सप्लेनेशन डीम्स, आई एम अगेन सेइंग डीम्स द सोसाइटी और क्लब and its member as two separate person, meaning thereby अगर ये डीमिंग फिक्शन हटा दें तो ये एक ही है। ठीक है सर, तो डीमिंग के कारण ये दो बंदे हुए। चलिए सर, आपने डीम कर दिया, वहां एक्सप्लेनेशन ने डीम कर दिया, दो व्यक्ति प्रिज्यूम हो गए, एक्चुअल दो व्यक्ति नहीं है, इट इज मी एंड माय क्लब। इसी तरीके से डीमिंग फिक्शन सेक्शन 25 के अंदर ब्रांचेस के बीच में भी आई हुई है। ऑल ऑफ यू आर अवेयर दैट टू ब्रांचेस आर deemed to be two separate person. They are not actually separate person, they are deemed to be separate person. Now comes the question to the main clause. आपने डीम करके दो व्यक्ति बना दिए, बट आपने एक गलती दोबारा कर दी उस प्रपोजल में। गवर्नमेंट जो प्रपोजल लेकर आई उसमें कहा गया द एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर कैश, deferred payment or any other valuable consideration. Sir, even if you deem me and my members are two different person, you can never make them a consideration payment between two of them. आप उन दोनों के बीच में consideration नहीं ला सकते। consideration कब आती है? when I am obligated to pay to someone else. Can I have a consideration payable to myself? No sir. Can a branch pay consideration to the other branch? No sir, because the other branch can never say that I have a right to recover this consideration from the other branch. Therefore friends, branch की जो transaction है उसको कहां पे रखा गया? उसको रखा गया शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 क्या कहता है? सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। और गवर्नमेंट ने इस क्लॉज के अंदर शेड्यूल 1 इवोक नहीं करा है। अब क्योंकि शेड्यूल 1 इवोक नहीं हुआ है, सेक्शन 15(4) इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। केवल और केवल वो ट्रांजैक्शन जहां पे कंसिडरेशन होंगी, केवल वो ही टैक्सेबिलिटी के जोन में आएंगी, और कंसिडरेशन बिटवीन मेंबर एंड द क्लब कभी भी नहीं हो सकती। सो इन माय हम्बल ओपिनियन, द वे इट हैज बीन ब्रॉट अप, इट हैज क्लैरिफाइड रादर कि कोई टैक्स नहीं है क्लब्स के ऊपर, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, रादर देन द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट वाज टू इंपोज द टैक्स ऑन टू दिस। सो जिस भी व्यक्ति का कोई भी केस पीछे क्लब्स के चल रहे हैं जीएसटी में टैक्सेबिलिटी के ऊपर, पीछे 2-3 एडवांस रूलिंग्स आई थी, दे वर मच रिजॉइस्ड। लॉयन क्लब की भी आई थी, दूसरी भी आई थी। आई कैन टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, दोज वर नॉट वेरी वेल वर्डेड इन एब्सेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डीमिंग फिक्शन। नाउ दिस डीमिंग फिक्शन, द वे इट हैज बीन ब्रॉट इन, इट हैज स्ट्रेंथेंड, इट हैज गिवन द स्ट्रेंथ टू द कॉज ऑफ द असेसी। अब असेसी कह सकता है सर देखिए आपने खुद लिखा है deemed to be two separate person, मतलब government itself accept that club and members are not two person, they are one person. Number 2, between the deeming person there can never be a consideration, and therefore you are only wanting to cover the transaction with a consideration, and my dear sir, therefore this particular transaction also fails. So this particular insertion, even if it is there retrospectively from 1st of July, as I see, is not an effective clause to the count of the clubs, societies and their member. अब इसके implication सर किस किस के ऊपर है? इसके implication RWS, बहुत recently एक डिस्कशन हो रहा था, उसमें मेरे पास सवाल ये आया कि RWA एक लिफ्ट लगा रही है सोसाइटी के अंदर, 3 करोड़ रुपए की लिफ्ट है। RWA ने जो पैसा देना है वो सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर को देना है, और कॉन्ट्रैक्टर 3 करोड़ चार्ज करेगा प्लस 18% 54 लाख रुपीस का जीएसटी चार्ज करेगा। क्वेश्चन इज, should RWA charge the divided amount between the members for supply? My humble opinion, no sir. There is no supply going from RWA to the member.
The property is a co-owned property, but there is no supply from RWA to the member of any kind of lift. There is only one supply from the supplier of the lift to the society. And society कौन है? Society सारे members को जोड़ के बनी है, क्योंकि society और members आप अलग नहीं कर सकते. There is a concept of mutuality. There is no need to raise an invoice from the society to the members. अब सर बात आती है कि सर ये जो जितना मंथली चार्ज लिया जा रहा है, जितना ये कंट्रीब्यूशन लेके मेंटेनेंस ली जा रही है, सर ये सारी अमाउंट्स अगर आज ये क्लॉज नहीं आता तो भी मैं कहता आउट ऑफ अबंडेंट कॉशन जो है टैक्स पे होना चाहिए. बट क्योंकि जिस तरीके से क्लॉज आ गया रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1 जुलाई 2017, unless government comes out with a amendment bill, this particular clause has weakened the position of the government. अगर किसी सोसाइटी ने पीछे टैक्स नहीं दिया है, this is a very welcome step for that particular society. उस सोसाइटी के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा just because the concept of mutuality has obtained I would say मोहर confirmation from the government itself. Sir, Honorable Supreme Court ने स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कलकत्ता क्लब लिमिटेड जिस इस पर्टिकुलर डिसीजन के अंदर बड़ा कैटेगोरिकली यंग मैन इंडिया एसोसिएशन को भी अपहोल्ड किया था, रांची क्लब, जिमखाना क्लब, इन सब की भी ऑब्जर्वेशंस को उसने लिया था और उसके बाद उसने कहा था कि आर्टिकल 366(29)A हैज नो एप्लीकेशन टू मेंबर्स क्लब इन टर्म्स ऑफ लेवी ऑफ वैट. अगर आप आर्टिकल 366(29)A की बात करते हैं, दैट इज अ डीम्ड सेल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. सर, डीम्ड सेल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड after the very celebrated judgment of Gallant-Runkley 1 in 1958 Honorable Supreme Court. उस पर्टिकुलर जो केस था उसके अंदर लड़ाई क्या थी, सभी स्टेट्स ने, कई जो स्टेट्स थी खासतौर पे जो साउथ की स्टेट्स थी, उन्होंने सेल टैक्स हुआ करता था. जितने भी सीनियर मेंबर्स हैं वो इस वर्ड से वाकिफ हैं. सेल टैक्स एक्ट हुआ करता था. यंग मेंबर्स ने तो जीएसटी देखा है. जीएसटी से पहले वैट था, वैट से पहले सेल टैक्स था. तो सेल टैक्स एक्ट के दौर में उन्होंने सेल की डेफिनेशन को एक्ट में चेंज किया और उसके अंदर एक्ट के अंदर डीमिंग फिक्शन ले आए कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और सप्लाई ऑफ फूड फ्रॉम द रेस्टोरेंट टू एनी अदर पर्सन विल बी डीम्ड टू बी सप्लाई ऑफ फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन विल बी डीम्ड टू बी सेल. अब केवल वो चेंज जो था वो एक्ट में था और जो कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो मदर सोर्स है सारी पावर्स का, वो ये कहता था दी स्टेट हैज गॉट अ पावर टू टैक्स दी सेल ऑफ गुड्स. नाउ द क्वेश्चन इन Gallant-Runkley 1 before the Honorable Supreme Court was, can the government amend and bring a tax on these deemed sale by amending the act itself? Honorable Supreme Court says no. When Constitution has allowed the power to tax the sale, you can only put a tax on the sale. And sale cannot be read beyond its natural meaning. When you say natural meaning, it is chattel qua chattel, meaning I am wanting a good, you are giving me that goods. It is not a passage of goods in any other manner. It is chattel qua chattel, goods as goods. And therefore, the tax was struck down by the Honorable Supreme Court. Now, in GST also, what has happened? GST के अंदर भी एक वर्ड है सप्लाई. हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ने दोबारा गवर्नमेंट को पावर दी, प्लीज इंपोज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज और बोथ. कहीं पर भी क्या सप्लाई की डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है? नहीं दी सर. अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी, कैन गवर्नमेंट अमेंड द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई इन द एक्ट ओनली and bring out all the deemed say supply within the ambit of supply? My humble opinion, no sir. You can only tax a supply in its natural meaning. What is the natural meaning of supply? To pacify the need of another person. So Constitution has intended to tax any transaction which was between two persons. So if you read it in that particular spirit, even the transaction of tax between branches is not tenable, it is not sustainable under GST. I hope I am clear on this particular point, sir. This particular point, if we are understanding, then clubs, societies, branches, any transaction where there is no supply,
will fall outside and can be challenged in the courts in the coming times. And I can tell you, in absence of any deemed sale in the constitution, my hope is that the Honorable Supreme Court will again follow its earlier verdict in Gannon Trunkley 1 and will struck down all kinds of deemed supply in the times to come. But abhi hum budget ke Gupta sir, yes sir. There is one question. Sir, What do you feel? Is there any change post budget? Is there any change in scenario? sir मैंने What was the provision earlier and what is the provision now? So is there any change or is it status quo? नहीं सर, ये एक नया क्लॉज इंसर्ट हुआ है AA. पहले ये तो हुआ है, पर मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले क्या टैक्सेबल था या नहीं था, क्या पोजीशन थी? पहले भी टैक्सेबल नहीं था, आज भी टैक्सेबल अभी भी टैक्सेबल नहीं है. हाँ, तो then what is the change? What was the need to bring this? The need was that Honorable Supreme Court ने जो last year एक verdict दिया था in the case of State of West Bengal versus Calcutta Club Limited, उसमें एक सवाल ये था कि सर्विस टैक्स और वैट क्या चार्ज हो सकता है फ्रॉम द सप्लाई मेड बाय द क्लब टू द मेंबर. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं हो सकता. तो जब ये सवाल का जवाब गवर्नमेंट के अगेंस्ट गया तो गवर्नमेंट ने अपने आप को जीएसटी में कवर करने के लिए ये वाला क्लॉज इंसर्ट किया सर. और इस क्लॉज को जिस तरीके से इंसर्ट किया गया, अभी मैंने मेंबर्स के साथ शेयर करा कि ये जो क्लॉज की वर्डिंग्स हैं ये गवर्नमेंट के फेवर में नहीं है, उल्टा एसएसटी के फेवर में है कि इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए. और मैंने गवर्नमेंट वाज लेविंग टैक्स अर्लियर, इसका तो ये मतलब हो गया ना. सर उनकी तो पोजीशन शुरू से यही रही है कि क्लब मेंबर्स, सोसाइटी मेंबर्स, इनके बीच में टैक्स लगेगा. दे आर वेरी क्लियर. बट एसएससी हैज बीन कंटेस्टिंग स्पोर्ट्स क्लब ऑफ गुजरात, रांची क्लब, जिमखाना क्लब, फॉर दैट मैटर यंग मैन एसोसिएशन. सारी एसोसिएशन क्या कहती हैं? सर वी आर वन, member and association is one, and therefore there cannot be a tax between any supply from the club or the society to the member. तो assessee कह रहा है मैं टैक्स नहीं दूंगा, गवर्नमेंट कह रही है टैक्स देना है. तो गवर्नमेंट को जब सुप्रीम कोर्ट ने वैट और सर्विस टैक्स में स्ट्राइक डाउन कर दिया कि तुम नहीं ले सकते टैक्स, तो गवर्नमेंट ने जीएसटी में कवर करने के लिए ये क्लॉज इंसर्ट किया. बट जिस तरीके से इंसर्ट किया, मैं आपसे फिर वही शेयर कर रहा हूं, ये गवर्नमेंट की पोजीशन को और वीक कर रहा है रादर देन स्ट्रेंथ देने के. गुप्ता सर, ये जो प्रावधान आया है ये रेट्रोस्पेक्टिव आया है 1 जुलाई 2017 से. आप ये देखिए, गवर्नमेंट को डर है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी आया था उसके चक्कर में जीएसटी से भी टैक्स को स्ट्राइक डाउन कर देगा कोर्ट. तो अपने को कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लेकर आए. नाउ अ रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट व्हिच इज अ वेरी मेजर सब्सटेंशियल अमेंडमेंट. Can it impose a tax retrospectively? No, we all know that. Any substantial change in the law can only apply prospectively when it is imposing a tax on the subject. तो पहले तो ये लगेगा तो prospectively लगेगा. दूसरा, उन्होंने कहा मेंबर और एसोसिएशन के बीच में हम केवल उसी ट्रांजैक्शन को टैक्स करेंगे जिसमें कंसिडरेशन होगी. मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि मेंबर और क्लब के बीच में या सोसाइटी के बीच में कभी क्या नहीं हो सकती? कंसिडरेशन. क्या होती है? कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन इज नॉट कंसिडरेशन. और मैंने इसीलिए आपको एक लिफ्ट का एग्जांपल भी दिया कि अगर सोसाइटी में एक लिफ्ट लग रही है, सोसाइटी लिफ्ट लगा रही है, सप्लायर लिफ्ट को इंस्टॉल करेगा, सभी मेंबर्स ने 10-10 लाख रुपए दे दिए, तो क्या उसके ऊपर सोसाइटी सभी मेंबर से टैक्स चार्ज करे कि आपके लिए नई लिफ्ट लगाई है? नो सर, नो नीड. It is a contribution, it is not a consideration. So यही चीज सारी चीजों पे एप्लीकेबल होगी. जितने लोग डील कर रहे हैं क्लब्स से, सोसाइटी से, उनके लिए ये बहुत वेलकम चेंज है. गवर्नमेंट ने टैक्स करने की बजाय उनके फेवर की बात कह दी है. So I now move on to the next one. I hope section 7, schedule 1, schedule 2, इन सब की रेलेवेंस आप सबसे शेयर करी मैंने. Now I'm coming to the second change, which is introduction of another double clause A. Section 16 subsection 2, there is again a clause which has been introduced, double A. वो clause क्या कहता है? वो clause जो है 36(4), अभी मैं एक छोटा सा रूल आपसे शेयर कर रहा हूँ, रूल 36(4).
एवरी मेंबर इज अवेयर ऑफ दैट। वो क्या कहता है, अगर आपके सप्लायर ने कोई ट्रांजैक्शंस अपलोड नहीं करी हैं तो आपके 2A में नहीं दिखेंगी। मैं बहुत जनरल टर्म्स में बता रहा हूं अभी। वो आपके 2A में नहीं दिखेंगी तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपको उसका क्रेडिट एक लिमिट तक एक प्रोविजनल क्रेडिट के रूप में दिया जा रहा है। दैट इज इक्विवेलेंट टू फ्रॉम 1st January 2021 5% of the credit which is uploaded by these other suppliers। मतलब मेरे पास टोटल क्रेडिट था 100 रुपए का, 90 रुपए का क्रेडिट मेरे सप्लायर्स ने चढ़ाया है, 10 रुपए का नहीं चढ़ाया। गवर्नमेंट ने कहा कि आप जो 10 रुपए का नहीं चढ़ाया वो नहीं ले सकते, केवल आप ले सकते हैं 5% एडिशनल क्रेडिट ऑफ द अमाउंट विच हैज बीन अपलोडेड विच इज 90 and therefore 94.5 is the total credit which you can take। Sir, what about the balance 5.5 rupees? Sir, you have to wait till that particular credit is uploaded by the supplier। तो अभी तक क्या हो रहा था, ये वाला जो इशू था ये वेरियस हाई कोर्ट्स के पास एक रिट के माध्यम से सभी लोग लेके जा रहे थे। एक रिट ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट के सामने लास्ट मंथ मैं भी अपीयर हुआ था, उसके अंदर हियरिंग क्लोज हो गई है। उसके अंदर इशू यही था, रूल 36(4) इज अल्ट्रा वायर्स द एक्ट एंड ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट का वर्डिक्ट हम वेट कर रहे हैं। द हियरिंग वाज कंक्लूडेड बट फ्रेंड्स Rule 36(4) के अंदर there were inherent issues। The rule was not sustainable because it was not having a power from the act। That is what the submissions of the SSC says। Rule 36(4) के अंदर पावर क्यों नहीं थी? क्योंकि एक्ट के अंदर कहीं पे भी प्रोविजनल क्रेडिट या क्रेडिट रेस्ट्रिक्शन का कोई कंडीशन नहीं था। सेक्शन 41 कुछ भी अमाउंट का क्रेडिट प्रोविजनल क्रेडिट के रूप में 2 महीने तक एसएससी को अलाउ करता था और उसके बाद वो मैचिंग प्रिंसिपल्स जो आपने सुने होंगे अभी तक लागू नहीं हुए हैं, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3, ये सब लागू नहीं हुए। अभी सिर्फ क्या चल रहा है, जीएसटीआर 1 और 3B। तो 1, 2 एंड 3 का जो पूरा मैकेनिज्म था वो फेल है, अभी वो नहीं चल पा रहा और उसके चक्कर में रूल 36(4) के पास कोई भी अनेबलिंग प्रोविजन नहीं है, कोई भी अनेबलिंग सेक्शन नहीं है and therefore my dear friends rule 36(4) might get struck down। I'm saying might get struck down। तो गवर्नमेंट को भी इस चीज का अंदेशा था, उन्होंने कहा एक्ट में हमारे पास कोई भी बैकिंग नहीं है तो हम एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करके हम इस प्रावधान के लिए एक सेक्शन ले आते। So we don't need to amend rule 36(4). We will introduce this rule as a section in the act itself and therefore they inserted section 16 subsection 2 clause AA। And what does it say? The detail of invoices or debit note referred to in clause A has been furnished by the supplier in the statement of outward supply and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner as specified in section 37। Meaning thereby very simply अगर सप्लायर ने सेक्शन 37 में जीएसटीआर 1 में जो भी सप्लाई चढ़ाई है और रिसिपिएंट के 2A में वो दिख रही है, उसका तो क्रेडिट रिसिपिएंट को मिलेगा। उसके अलावा जो रिसिपिएंट है उसको क्रेडिट किसी भी इनवॉइस का नहीं मिलेगा and this will be applicable from the date it will be notified। Now my dear friend rule 36(4) 20% से शुरू हुआ था, आप सबको याद होगा अक्टूबर 2019 में ये रूल आया था। इसने 20% की लिमिट रखी थी जिसको सभी लोगों ने रिप्रेजेंट किया गवर्नमेंट के सामने। गवर्नमेंट को कहा कि सर ये अनरीजनेबल है, ये थोड़ा सा हार्श रूल है। गवर्नमेंट ने सबकी रिप्रेजेंटेशंस को कंसिडर किया और उसके बाद उस 20% की लिमिट को घटा के 10% कर दिया। फिर दोबारा किसी ने रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजी। जब किसी की रिप्रेजेंटेशन नहीं आई, गवर्नमेंट ने फर्दर 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 को इसको फर्दर घटा के 5% कर दिया। और सर अब फ्रॉम द डे इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्ट ऑफ द एक्ट, इसको गवर्नमेंट ने 16(2) को 0 कर दिया। तो सर ये समझिए आप सारी चीज को कि 16(2) हैज गिवन a formal strength of whatever is appearing in the 2A। Yes, after the introduction of this particular clause AA, there will be also an amendment in the rules। और वो जो रूल्स हैं वो अपने आप को इसके कॉरस्पॉन्डिंगली सेक्शन 37 अमेंड करेगा के अंदर अमेंडमेंट आएगी और रूल 2A को। अब सबका सवाल आता है सर रूल 2A या 2B, सॉरी जीएसटीआर 2A या 2B। माय डियर फ्रेंड जीएसटीआर 2A और 2B में कोई फर्क नहीं है, एक ही फर्क है, एक स्टैटिक फॉर्म है, एक डायनेमिक फॉर्म है। दोनों के इंफॉर्मेशन जो है सेम ही आती है।
अगर किसी सप्लायर ने कोई डेटा अपलोड करा है तो वो दोनों में दिखेगा, नहीं तो वो दोनों में नहीं दिखेगा, सिर्फ टाइम फ्रेम का फर्क। सो इन दिस पर्टिकुलर केस फॉलो एनीथिंग unless it is notified specifically whether to follow GSTR 2A or 2B. All the friends who are following 2A, no problem. All the friends who are following 2B, no problem. But whatever you are following in the coming days, government will notify that this is the form you have to see for the purpose of availing ITC, input tax credit, under section 16 subsection 2 clause AA. Right, sir? So wait for this particular section. After this, again, a number of members have asked the question, sir, what will happen to rule 36.4? Sir, rule 36.4 is gone. उसमें जो प्रोविजनल क्रेडिट की आपके पास लिमिट थी, वो अब आपको आगे बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको जो दिख रहा है क्रेडिट, केवल उतना ही क्रेडिट मिलेगा। सर, क्या होगा अगर मेरे सप्लायर ने अपना आईटीसी नहीं चढ़ाया और मैंने बहुत हैवी सेल कर दी है? आई एम गिविंग अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. There is a supplier who is supplied you goods worth 10 lakhs. तो उसके ऊपर आईटीसी आया 1,80,000. आपने वही 10 लाख का सामान 10,50,000 में बेच दिया. नाउ व्हाट हैज हैपेंड? आपने 50,000 रुपए के ऊपर 18% आपने केवल 9,000 रुपए टैक्स देना था कैश लेजर से, बाकी सारा आईटीसी आपके पास आना था. बट आपके सप्लायर ने उस आईटीसी को अपने 2A में, अपने जीएसटी 1 में अपलोड नहीं करा और वो आपके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ. My dear friends, in this particular case, the recipient will not be able to take the credit of 1,80,000. He will have to pay entire 1,89,000 using his electronic cash ledger. एक चीज और मैं सबसे क्लियर कर दूं, सर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बहुत से मेंबर्स हर चीज के लिए यूज कर रहे हैं. Electronic credit ledger cannot be used for any other purpose as per section 49 subsection 4 of the Central GST Act for the payment of output tax. What is output tax? That has also been defined in the CGST Act. CGST Act section 2 clause 82. It defines output tax as the tax which is chargeable, underline the word chargeable, in the under the provisions of this particular act. Now, my dear friend, what is chargeable? Whatever the rate has been notified in the notification number 1 or notification number 11 of 2017 dated 28th of June 2017. जो भी रेट उसमें बताया गया है केवल वही रेट आप पे करेंगे. दैट इज कॉल्ड चार्जेबल. अगर किसी ने उससे ऊपर रेट चार्ज कर लिया तो वो जो व्यक्ति है उससे गवर्नमेंट जो है टैक्स पूरा कलेक्ट तो करेगी, बट जितना रेट चार्जेबल के अंदर आएगा वो तो करेगी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से, बाकी टैक्स कराया जाएगा कैश लेजर से. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है क्योंकि सभी जो प्रोफेशनल ब्रदर्स हैं उनके पास कोई क्लाइंट आता है, कहता है सर आप मेरे सीए हैं, मेरे को थोड़ा सा गाइड करिए, मेरे पे ये एक आइटम में मैं डील कर रहा हूँ, इसमें 5% टैक्स भी लग सकता है और 12 भी. आधी मार्केट 5 लगा रही है, आधी 12 लगा रही है, मुझे कौन सा टैक्स लगाना चाहिए? आपने देखा कि हाँ थोड़ा कंफ्यूजन है, आपने कहा ठीक है यार, लग तो रहा है कि इस पे 5 लगना चाहिए, बट नाउ प्लीज मार्क माय वर्ड्स, आउट ऑफ अबंडेंट कॉशन, एज अ कंजर्वेटिव अप्रोच, बहुत सारे टर्म्स हम यूज करते हैं, आप इसके ऊपर 12% टैक्स लगा दीजिए. आपने क्या करा? आपने अपने क्लाइंट को सेव करा. दैट इज द माइंडसेट विच वी हैव. बट हुआ क्या? हुआ ये, क्लाइंट ने 12% टैक्स लगाया और 12 में से 10% टैक्स वो आईटीसी यूज करके पे कर रहा है. अब कल को जब इसकी जो क्लैरिटी है वो आई और उसने कहा नहीं इसमें 5% टैक्स है, एक्ट में अमेंडमेंट नहीं आई है सर, केवल क्लैरिटी आई है कि इसमें 5% टैक्स है, तो सर जो 7% एडिशनल अमाउंट है that can only be paid by the person using the electronic cash ledger, because electronic credit ledger can only be used for the payment of output tax, and output tax means tax chargeable under the act. Second parallel question जो बहुत members पूछते हैं वो ये पूछते हैं, सर मेरा जो सप्लायर है उसने 12% टैक्स ले लिया पर उस आइटम पे 5% टैक्स है, तो क्या मैं 12% का क्रेडिट लूं या 5% का? सर आप केवल और केवल 12% का क्रेडिट पूरा ले सकते हैं, आपको 5% के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं. फॉर द वेरी सिंपल रीजन, जैसे आउटपुट टैक्स वर्ड यूज करता है चार्जेबल, वैसे ही सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 विच इज द एनेबलिंग सेक्शन फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो वर्ड यूज करता है चार्ज्ड. द
tax which has been charged on the supply of goods or services used in the course or furtherance of the business. Now please understand the difference. जहां पे टैक्स को पे करने की बात थी तो चार्जेबल, जहां पे टैक्स को क्रेडिट लेने की बात है वहां वर्ड यूज किया गया है चार्ज्ड, एंड देयरफॉर एनी रिसिपिएंट शुड नॉट बी वरीड कि उससे टैक्स कम चार्ज किया गया, ज्यादा चार्ज किया गया, क्या रेट सही था क्या रेट गलत था, उसके ऊपर नहीं जाना। लास्ट मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, अगर कोई भी असेसी अपने ही इज अ ट्रेडर, उसके पास एक इनवॉइस आती है, उसके ऊपर टैक्स चार्ज है 5%। माय डियर फ्रेंड्स, उसके पास कौन सा इनपुट टैक्स का क्या रेट है, उससे उसके आउटपुट टैक्स का रेट मत डिसाइड करिए। अपने हर क्लाइंट के रेट को रिव्यू करिए। आने वाले दिनों में जो ऑडिट्स होने हैं, असेसमेंट्स होने हैं, सबसे ज्यादा झगड़े, सबसे ज्यादा लायबिलिटी टॉप पे नंबर 1 आज की डेट में तो आईटीसी है। आईटीसी किस लिए है? फेक इनवॉइसेस के कारण। एंड दिस आई वुड से the entire fiasco of fake invoicing is a very short-lived kind of a thing. Another 3-4 months you will find an end to this, and then the audits will come to some conclusion, and you will find that the audits have come out with observation and demands for the very first time. So in that particular case, my dear friends, you will be faced with technical issues. The fake invoice is now almost, I'm not saying in entirety, it is almost a item of the past, but yes, it will haunt some people for some time, because this particular item, fake invoices, ultimately हुआ क्या है? It is a damage to the government exchequer. गवर्नमेंट की किटी को नुकसान हुआ था, और यही झगड़ा शुरू से अब तक फेक इनवॉइसिंग के अंदर चला है। फेक इनवॉइसिंग क्या है? फेक इनवॉइसिंग ये नहीं है कि पीछे वाले ने टैक्स पे नहीं करा। फेक इनवॉइसेस का मतलब है आपके पास गुड्स और सर्विसेज नहीं आई और उसके बिना आपने क्रेडिट ले लिया। सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 की 4 कंडीशंस हैं, उसमें बी एंड सी क्या कहती है? गुड्स हैव बीन रिसीव्ड बाय द सप्लायर, सॉरी रिसिपिएंट, और फिर सी कहता है द टैक्स हैज बीन पेड बाय द सप्लायर टू द एक्सचेकर, गवर्नमेंट एक्सचेकर। सर अगर सी फुलफिल नहीं भी होता है तो क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी की कोई भी बैकिंग, कोई भी मैकेनिज्म असेसी को अवेलेबल नहीं है। पर whether the goods or services has been received or not, that's a very crucial question which you should, in many large cases, you should look into it, ki has the person received? Many a times it is not a question of fake invoicing. I'll give you another very small example. एक कंसल्टेंट ने शुरू में कुछ एडवांस लिया, उसके अगेंस्ट उसने इनवॉइस रेज कर दी। सर उसका क्रेडिट भी जो रिसिपिएंट है उसने ले लिया, which is wrong, because that particular invoice, the credit can only be taken when the goods or services has been received. Let me move further to the next proposal by the Honorable FM. It's a very welcome proposition. Interest which has been charged or which is payable on the short payment of taxes shall be only paid on the component which is paid by the cash ledger. 100 रुपए का आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी थी, 80 रुपए की आपकी आईटीसी थी, आपको रिटर्न फाइल करनी थी 20 तारीख को, 20 ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ, 20th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। आपने रिटर्न फाइल करी 25th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। माय डियर फ्रेंड्स, 5 दिन का आप पे इंटरेस्ट लगेगा। पहले झगड़ा क्या था? सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 के अंडर उन्होंने जो टैक्स चार्ज करने की बात करी थी वो करी थी पूरे के पूरे 100 रुपए पे, पर उसके अंदर एक प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया लास्ट बजट के अंदर, जिसने कहा कि केवल कैश कंपोनेंट के अंदर यू हैव टू पे टैक्स, सॉरी इंटरेस्ट ओनली ऑन द अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम द कैश लेजर। नाउ दिस पर्टिकुलर पोजीशन व्हेन इट केम, it was applauded by the assessees and the professionals over the pan India, but since the introduction was not retrospective, that was one complaint, one suggestion which moved from the entire India to Honorable FM. This particular finance bill has overcome that particular clause also, and it has brought that particular proviso under section 50 subsection 1 retrospectively from 1st of July 2017. So अगर आपका 100 रुपए का टोटल टैक्स है, 80 रुपए आईटीसी से पे होना है, 20 रुपए जो है आपका कैश लेजर से पे होना है, तो आपको केवल इंटरेस्ट 20 रुपए पे देना अगर आप रिटर्न लेट फाइल करते हैं, क्योंकि तब आपका जो अमाउंट ऑफ टैक्स है दैट विल बी डीम्ड टू बी पेड।
नाउ फ्रेंड्स, इसके अंदर कुछ प्रिकॉशंस हैं, लेट मी लिस्ट यू वन बाय वन। ये बेनिफिट ऑफ रिड्यूस्ड मतलब नेट ऑफ आईटीसी आपको किन किन केसेस में नहीं मिलेगा। नंबर वन, any tax which is lying in your cash ledger but not debited will not be counted as tax paid. I am again reminding everyone of the decision of Mega Engineering. It is a mechanism which has been laid down as per the act and the rules. Whatever tax has been paid by that particular mechanism will only be counted as tax paid. So आपका जो भी cash ledger जो है pay हो गया, that is your tax paid. If cash ledger is not showing a payment, then that is not a tax paid. My dear friends, अगर आपने सपोज 100 रुपए का आपका टैक्स था, आउटपुट टैक्स 100 का 100 आपने कैश लेजर में पैसा डाल दिया, दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज टैक्स पेड। आपको 100 रुपए पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा जब तक आप उसको डेबिट नहीं कर देते अपने कैश लेजर से। नंबर टू, एनी अमाउंट विच इज पेड बाय द पर्सन बाय DRC 03। सो देयर इज एन एसएससी जिसका टैक्स शॉर्ट पे था 1 लाख रुपए। उस पर्टिकुलर एसएससी ने 80,000 रुपए तो पे करा आईटीसी से और 20,000 पे करा बाय यूजिंग दी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। दी बेनिफिट ऑफ सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 प्रोवाइजो will be limited to the return only, it will not be available to the DRC. So ये ध्यान रखिएगा, DRC के केस में आपको नहीं मिलेगा, केवल उसी महीने की रिटर्न में अगर आपने डिले करा है और उसका जो आईटीसी का है उस पे आपका इंटरेस्ट छोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोवाइजो दिया है। थर्ड, any tax which is wrongly paid by CGST or SGST in place of IGST, that will also not get benefit of this particular proviso. The provision which is applicable as a relief is section 77 under the CGST Act and section 19 under the IGST Act. वो ये दोनों provisions कहते हैं, अगर आपने कोई भी टैक्स CGST SGST पे कर दिया IGST की जगह या IGST पे कर दिया C और S की जगह, तो आपको करेक्ट टैक्स पे करना है और इनकरेक्ट टैक्स का रिफंड लेना है और आप पे कोई इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं लगेगी। तो उसके लिए भी सेक्शन 50 का प्रोवाइजो काम नहीं आएगा, सेक्शन 77 और 19 काम आएंगे। एक और जगह पे आपको ध्यान रखना है, ये बहुत अहम है। एक व्यक्ति अक्टूबर की रिटर्न भरता है, उसका 1 लाख रुपए का आउटपुट था, 80,000 रुपए का उसका इनपुट था और 20,000 रुपए का कैश लेजर से उसने पेमेंट करनी थी। दिस वाज अ सिनेरियो, सेम सिनेरियो। 1 लाख की जगह गलती से उसने 90,000 रुपए अपना आउटपुट टैक्स दिखाया और उसने 90,000 अपना आईटीसी भी 10,000 कम दिखाया। उसने ये दोनों फिगर्स अपनी अगली रिटर्न में, नवंबर की रिटर्न जो कि उसने दिसंबर में फाइल करी, उसमें दिखाई। सर, इवन इफ यू हैव शोन दीज टू आइटम्स इन द सब्सिक्वेंट मंथ, you will not get the benefit of reduced rate of interest. It is applicable when you show the tax amount for a tax period in the return of such tax period only. So subsequent tax period की return में अगर आप कुछ दिखाते हैं, the benefit will not be available to you in terms of reduced interest कि ITC पे आपको interest नहीं देना। So I hope आपके पास काफी सारी चीजें हैं जहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो क्लाइंट है उसको ये बता दे कि बॉस जो टैक्स आपको जिस महीने में देना है, अगर आपने उस महीने की रिटर्न में दिया तभी आपको नेट के ऊपर इंटरेस्ट का प्रावधान है। आपको ये नेट के ऊपर इंटरेस्ट का प्रावधान ओवरऑल अम्ब्रेला के अंडर नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने अगर गलती से टैक्स गलत ले लिया, दो तरह की गलतियां हो रही है सर आईटीसी लेने में। नंबर एक, आईटीसी था ही नहीं बट ले लिया। नंबर दो, सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह आईजीएसटी में ले लिया या आईजीएसटी की जगह सीजीएसटी में ले लिया। सर, इन दोनों का भी बेनिफिट जो है आपको सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 के तहत नहीं मिलेगा। ये प्लीज ध्यान रखिएगा, सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 बहुत ही लिमिटेड बेनिफिट है, बट हाँ, उस महीने की रिटर्न में जो भी आउटपुट टैक्स आएगा उसमें से जो आईटीसी कंपोनेंट होगा वो हटा के नेट वैल्यू के ऊपर आपको इंटरेस्ट लगेगा। दैट इज व्हाट सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 सेज। सर, नेक्स्ट जो अमेंडमेंट आई है वो आई है इन रिलेशन टू डिटेंशंस एंड कॉन्फिस्केशन, सेक्शन 129 130 रेड विद सेक्शन 74। दोनों सेक्शंस क्या कहते हैं? सेक्शन 129 और 130 पहले आपस में इंटरलिंक हुआ करते थे। 129 में डिटेन होता था ट्रक, उसके बाद आप अगर उसको रिलीज कराते थे
तो आपको एक अमाउंट पे करनी पड़ती थी बाय वे ऑफ कैश और एनी अदर सिक्योरिटी विच हैज बीन ऑफर्ड विच इज स्टिल टुडे। और अगर आप वो नहीं करते थे देन ऑफिसर विल कॉन्फिस्केट द गुड्स एंड द कन्वेयंस and was able to sell to recover the government dues under section 130। अब प्रॉब्लम क्या होता था, जब डिटेंशन हुई थी उसके बाद कभी भी सेल करने का प्रावधान पावर नहीं थी ऑफिसर के पास, उसको 130 में कॉन्फिस्केट करके फिर सेल करना होता था। सर गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को रियलाइज करते हुए ऑफिसर्स को फ्री कर दिया। 129 और 130 की अब जो प्रोसीडिंग्स हैं दोनों को इंडिपेंडेंट कर दिया है। 130 ड्यूरिंग दी ट्रांजिट के अलावा भी केसेस में कॉन्फिस्केशन प्रिस्क्राइब करता है। सो 130 की पावर्स जो है वो वाइडर हैं, 130 को अलग कर दिया। 129 एक इंडिपेंडेंट प्रावधान की तरह है। अगर उसने कोई भी गुड्स को डिटेन करा, गुड्स डिटेन करने के बाद अगर उसकी पेमेंट नहीं होती है तो उस पेमेंट के जो नहीं हुई उस पेमेंट के अवज में जो गुड्स है उनको सेल कर सकता है ऑफिसर। सो ये थोड़ा सा 129 130 को आप ध्यान करिएगा, थोड़ा सेंसिटिवली इन चीजों को देखिएगा। अब कोई भी ई वे बिल, और मैं सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, अभी ई इनवॉइसिंग शुरू हो गई है। ई इनवॉइसिंग के अंदर बहुत सारे जितने भी असेसीज हैं वो कई तरह की गलतियां कर रहे हैं। दो चार केसेस मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जो ई इनवॉइस है और जो ट्रक्स हैं, जो ई वे बिल्स हैं, उनकी डिटेल मैप नहीं हुई। सेकंड, कुछ इनवॉइसेस को ई इनवॉइसेस आईआरएन नंबर जनरेट करना असेसी से रह गया। तो ये जो गलतियां हैं इनके कारण एक गैप खड़ा होने के चांसेस हैं। एक बात मैं सबसे बड़ा क्लियर कर दूं, अगर किसी ने ई इनवॉइस रेस करनी थी और उसने ई इनवॉइस ना रेस करके टैक्स इनवॉइस मैनुअल रेस कर दी, फ्रेंड्स उसकी वो इनवॉइस वैलिड इनवॉइस नहीं मानी जाएगी। अगर आप रूल को बड़ी क्लियरली पढ़ें, सेक्शन 31 बड़ा इस मामले में क्लियर है। जो इनवॉइस जिस तरीके से रेज होनी है उसके बाद ही उसको टैक्स इनवॉइस का दर्जा मिलेगा, उसके बिना उसको दर्जा नहीं मिलेगा। सो इस चीज का प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू दी नेक्स्ट आइटम, सेक्शन 74 की प्रोसीडिंग्स जब कंक्लूड होंगी, सेक्शन 74 क्या कहता है, वो रिकवरी प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करता है। 74 is applicable in case when there is a demand and recovery in cases of fraud, suppression or misstatement in order to evade the taxes. And 73 is applicable when there is a demand and recovery where there is no fraud or suppression or misstatement. तीन चीजें नहीं है तो इन तीनों में से अगर कोई भी चीज होगी then section 74 will be applicable. And suppression is very very wide, my dear friends. Suppression क्या कहता है? Suppression ये, there is an explanation to section 74. Any detail which was supposed to be provided by the taxpayer in the return and was not provided will be considered as suppression. So suppression बहुत wide है और इसी suppression को देखते हुए मैं कह रहा हूँ जो audits हटे हैं under 35(5) it will go to the detriment of the assessee more than the income loss to any chartered account. Moving further, sir, 129 130 की प्रोसीडिंग्स कोई भी अगर रहती थी, अगर किसी एसएससी की सेक्शन 74 के डिमांड रिकवरी की प्रोसीडिंग्स अगर खत्म हो जाती थी तो 129 130 की ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती थी बिकॉज ऑफ द एक्सप्लेनेशन। हाउएवर नाउ द सेक्शन हैज बीन अमेंडेड एंड नाउ द सेक्शन इज सेइंग कि हम 129 130 की प्रोसीडिंग्स को सेक्शन 74 से इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, मीनिंग देयर बाय 129 130 की प्रोसीडिंग्स अब सेक्शन 74 के विजा वी खत्म नहीं होंगी। अगर सेक्शन 74 की प्रोसीडिंग्स खत्म हो गई तब भी 129 और 130 की प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी। दे विल नॉट बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड ऑन द कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 74. So that's a big change. It will lead to problem in many cases. Earlier there was a big relief. मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, एक व्यक्ति के 3 ट्रक पकड़े गए थे अक्रॉस इंडिया। अब उन 3 के अंदर 129 के अंदर वो अपील के अंदर ही हैज गॉन। मीनवाइल सेक्शन 74 की उसकी प्रोसीडिंग्स, उसका एक डिमांड नोटिस आ जाता है ऑन द शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस इन दीज 3 केसेस। उसने अपने जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को केस प्रेजेंट किया एंड द जुरिसडिक्शनल ऑफिसर ड्रॉप द डिमांड। पहले अगर उसने डिमांड ड्रॉप कर दी थी तो 129 130 के उसकी जितनी डिमांड्स थी वो खत्म हो जाती।
पर अब ऐसा नहीं होगा, वो डिमांड खत्म होने के बावजूद 129 130 के केसेस उसके चलते रहेंगे. So that's a big loss to the SSC. Coming on to the next one, sir. Liability shown in GSTR 1 liable for recovery without SCM. तो सर Major इसमें change. क्या लॉजिक है, ये क्यों ऐसा किया गया कि केसेस चलते रहेंगे 130 वाले? Sir, व्हाट वाज द पॉइंट? 129 के अंदर ना प्रोसीजरल एरर्स भी हैं. सपोज ई-वे बिल के अंदर ट्रक नंबर गलत लिखा गया, तो उसकी प्रोसीडिंग्स 129 में चलेंगी. पर 74 के अंदर देयर वाज नो इवेजन ऑफ टैक्स. सो पहले क्या गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि भाई अगर आपका 74 का केस खत्म हो गया है, विच इज द डिमांड एंड रिकवरी इन केस ऑफ मिसस्टेटमेंट, फ्रॉड एंड सप्रेशन, तो आपका 129 का ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा. बट अब ऐसा लगता है गवर्नमेंट जी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है डेटा माइनिंग भी कर रही है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ई-वे बिल तो परफेक्ट है, लेकिन क्या हो रहा है कि वहां ट्रक पास नहीं हो रहा टोल टैक्स से, वो तो वहां क्या इश्यू आ रहा है, वहां ये देख रहे हैं कि भाई ई-वे बिल वगैरह सब कुछ बना हुआ है, लेकिन वहां ट्रक RFID टैग ही नहीं है उसमें, वहां पास ही नहीं हो रहा. वो बड़े इश्यूज आ रहे हैं. अब सीए को भी ये चीजें पता नहीं चलती. गुप्ता सर, जहां तक ट्रक की बात है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक जिक्र किया था फेक इनवॉइसिंग का. फेक इनवॉइसिंग जो है, वो केसेस जितने भी बन रहे हैं अभी तक कोई भी शो कॉज नहीं इशू हुआ है. सभी मेंबर्स बैठे हैं, मैं सभी से व्यू इनवाइट करूंगा. किसी के पास भी कोई फेक इनवॉइस का शो कॉज हुआ नहीं हुआ. अभी जो डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और रिकवरी, उसी के दौरान रिकवरी हो रही है. एक भी शो कॉज इशू नहीं हुआ है पूरी दिल्ली में, एनसीआर में. सर कारण क्या है, अभी तक केस का पूरा जो फैक्ट पैटर्न है वो किसी को भी लिखना नहीं आया, ना बताना आया. आपने बहुत एक वैलिड पॉइंट उठाया, उस टोल से वो ट्रक गुजरा ही नहीं. अब ये वाला केस मैं वैट में लड़ रहा हूँ. ट्रक का ना होना, गुड्स का ना आना, ये एलिगेशंस अलग बात है. पर अगर ऑफिसर ये एलिगेशन लगाता है कि इस टोल से वो ट्रक नहीं गुजरा था, इसलिए मैं ये आईटीसी डिसअलाउ कर रहा हूं, तो मेरा तो सिर्फ इतना सा कहना है सर, कौन से रूल और सेक्शन में लिखा था कि इस टोल से गुजरेगा तो ही मेरा आईटीसी मिलेगा. आपको एलिगेशन लगानी थी तो आप नॉन रिसीट की लगाओ ना. आप ये एलिगेशन क्यों लगा रहे हो कि टोल से नहीं गुजरा, और ये लाइव है सर. तो ये अगर किसी के पास आता है, आपने बहुत ही वैलिड मेरे को एक एग्जांपल अपना शेयर किया. अगर किसी के पास शो कॉज क्योंकि आता है एक कि केस हुआ था जी, एक जैसे हमारे किसी क्लाइंट का केस था, वहां यही था, वो जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट में हम गए, वो क्लाइंट ने सारी चीजें प्रोवाइड कर दी, पर वो बोला देखो जी ऐसे है, आप जो सब कहानी कर रहे हो वो ठीक है, पर अब RFID टैग से हम अगर मिलाएं तो मिलता नहीं है आपका. बिल्कुल ठीक है सर. अब सर वो RFID टैग के बिना गया, उसने टोल टैक्स के अंदर क्या किया क्या नहीं किया मुझे नहीं पता, पर मेरे कहीं भी लॉ के अंदर ये नहीं लिखा कि टोल टैक्स की पर्ची नहीं होगी तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा. अगर आपको मना करना है तो मुझे वहां पे कानून में चेंज कर दीजिए. तो इन केसेस में मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप आराम से जाएं, आप अपने पूरे टैक्स को, क्योंकि एसएससी को भी आपको बचाना है, आप कहिए सर हम पूरा टैक्स अंडर प्रोटेस्ट पे करते हैं. अंडर प्रोटेस्ट का क्या मतलब है, आई एम नॉट इन एग्रीमेंट विद यू बट आई एम पेइंग द एंटायर टैक्स जस्ट टू शो माई कॉपरेशन. पूरा टैक्स अंडर प्रोटेस्ट पे कर दीजिए, कोई अथॉरिटी मना नहीं करेगी. उसके बाद आप उनसे कहिए सर प्लीज इशू मी दी शो कॉज नोटिस. तब तक चुप रहिए. अगर मुद्दा ये है, अगर आपके पास यही शो कॉज आ जाता है, आई कैन टेल यू इट विल नॉट स्टैंड इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द वेरी सिंपल रीजन देयर इज नो रिक्वायरमेंट दैट देयर हैज टू बी अ स्पेसिफिक पैसेज ऑफ द टोल. एलिगेशन शो कॉज नोटिस में क्या लगाते हैं बहुत महत्व रखता है. मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ. सर्विस टैक्स एरा के अंदर, अच्छा शो कॉज नोटिस सब मेंबर्स को पता ही है, आई एम जस्ट रीइटरेटिंग जो आप सबको पता है. शो कॉज नोटिस इज नथिंग बट अ फाउंडेशन ऑफ द एंटायर डिमांड. अगर गवर्नमेंट ने उस फाउंडेशन को गलत दे दिया, मतलब एलिगेशंस गलत दे दी या फैक्ट्स गलत दे दिए, तो पूरी डिमांड स्ट्राइक डाउन हो जाएगी. सो अपने शो कॉज नोटिस को बड़ा हमने शो कॉज नोटिस पर एक अलग से वेबिनार किया था, प्रदीप मित्तल जी को बुलाया था, उन्होंने हमें ड्राफ्ट रिप्लाई भी दिया था कि कैसे आपने शो कॉज नोटिस को रिप्लाई करना है. सर यही सारा खेल है. मैं अब आपको एक छोटा सा लाइव और एग्जांपल बताता हूँ.
एक केस के अंदर एक ये सर्विस टैक्स के दिनों की बात है, जो मित्र सर्विस टैक्स में प्रैक्टिस करे तो वो एकदम समझ जाएंगे। 2012 से पहले स्पेसिफिक कैटेगरीज होती थी। तो एक क्लाइंट, एक असेसी था, उसका काम था पीओपी करना, फिनिशिंग टाइल्स करना, दीवारों का प्लास्टर करना, पाइपलाइन इंस्टॉल करना, एक्चुअल काम करता था। डिपार्टमेंट ने उसकी कुछ रिसीट्स को देखा कि बैलेंस शीट में टैक्स नहीं दिया गया। डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर जो शोकॉज नोटिस रेज किया, वो ये रेज करा कि इस सज्जन ने इंटीरियर डेकोरेटर में टैक्स नहीं दिया। उन्होंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को नहीं वो किया, उन्होंने इंटीरियर डेकोरेटर की कैटेगरी को इवोक कर दिया। सर वहीं पे फंडामेंटल फ्लॉ आ गया। इवन दो अगर वो डिमांड डिपार्टमेंट सही तरीके से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में रेज करता तो पक्का मैं कहता हूं वो कंफर्म हो जाती। बट जो शोकॉज नोटिस आया उसने क्या कहा, इंटीरियर डेकोरेटर ना कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। आप यकीन करेंगे सर, वो डिमांड वैलिड डिमांड होने के बावजूद, क्योंकि शोकॉज नोटिस द वेरी फाउंडेशन इज रॉन्ग, दैट पर्टिकुलर डिमांड वाज ड्रॉप्ड बाय द ऑनरेबल ट्राइब्यूनल। सो शोकॉज नोटिस कभी भी ये मत सोचिए कि लड़ाई खत्म हो गई है अगर आप किसी अथॉरिटी के पास गए हैं। अगर आप बिलीव करते हैं कि एसएससी जेन्युइन है, मैं फेक इनवॉइसिंग वालों के बारे में बात नहीं कर रहा, आपके एसएससी जेन्युइन है, आपका एसएससी गलतियां करेगा, अगर बिजनेस कर रहा है तो गलती भी करेगा, तो उनको डिफेंड करना है काउंसिल का काम होता है। उस केस के अंदर जस्ट बी पेशेंट, टेक दी शोकॉज नोटिस। अगर कभी लगता भी है कि सर ये डिमांड पे करनी है, हाँ अगर कोई बिल्कुल ही एपरेंट मिस्टेक है, बिल्कुल ही सामने दिख रहा है कि नहीं पे हुआ, पे कर दीजिए सर, डोंट गो फॉर लिटिगेशन। बट जहां भी व्हेन यू आर इन डाउट एंड व्हेन यू डोंट वांट अ हरेसमेंट, प्री डिपॉजिट दीजिए, शोकॉज नोटिस लीजिए और उसका रिप्लाई करिए। एंड शोकॉज नोटिस जैसे गुप्ता जी ने कहा, अभी सर ने बताया कि मित्तल साहब ऑलरेडी डेलिवेट कर चुके हैं। ये तो एक ऐसा टॉपिक है जहां 3 घंटे भी शोकॉज नोटिस के ऊपर हर स्पीकर बोल के खुश है। सो मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं 1 की रिकवरी की बात कर रहा था, 129 और 74 से हम आगे बढ़ जाते हैं। जीएसटीआर 1 अब आपको अगर आप भर रहे हैं, so there is an explanation which has been added to section 75 subsection 12, whereby it has been said that self-assessed tax shall include the tax which is payable in respect of outward supplies, detail of which has been furnished under section 37 but not included in the return furnished under 39। मतलब जीएसटीआर 1 में अगर आपने कोई भी आउटवर्ड सप्लाई दे दी और 3B में उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया, तो उसको गवर्नमेंट सेल्फ असेस टैक्स के अंदर मानेगी और उसके अंदर कोई भी शो कॉज नोटिस देने की गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट सीधा उसके अंदर रिकवरी इवोक कर देगी। अब यहां पर थोड़ा सा कंसर्न आ रहा है, इसके दो पहलू हैं देखने के। एक पहलू है गवर्नमेंट के नजरिए से देखने का, वो ये कहते हैं कि सर जितने फेक इनवॉइसेस के केस हुए उसके अंदर हुआ क्या, सारे के सारे जीएसटीआर 1 भरे गए, सामने वाले जीएसटीआर 1 को क्रेडिट लेता गया और हमारे पास 3B के अंदर कोई टैक्स नहीं आया। इसलिए हम क्या करते, अभी तक उनको शोकॉज नोटिस करना पड़ेगा, शोकॉज नोटिस एडजुडिकेट करना पड़ेगा, उसके बाद वो रिकवरी कर सकते हैं। इतने बड़े प्रोसेस को उन्होंने कट कर दिया। उन्होंने कहा अगर आपने जीएसटीआर 1 के अंदर कोई भी अमाउंट दिखाई है और 3B के अंदर उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करा है, तो हम सीधा अब आपसे रिकवरी ले सकते हैं। सर ये एक डिसीजन आया था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का इन द केस ऑफ कबीर रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड। ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट upheld the action of the department of initiating recovery without the show cause notice under 73-74. It was observed by the Honorable High Court that what has been declared in GSTR 1 but it has not been paid in 3B is nothing but a self-assessed tax of the person and therefore recovery can happen under section 75 subsection 12. So without even the amendment, Honorable Madhya Pradesh High Court ने डिपार्टमेंट के फेवर में दिया था। सर कहीं तक ये बात ठीक भी है कि अगर आपने 1 के अंदर कोई डिमांड दिखाई है और 3B में टैक्स नहीं दिया है तो आपसे रिकवरी होगी, अदरवाइज तो हर व्यक्ति 1 फाइल करता जाएगा, 3B नहीं फाइल करेगा। इसका दूसरा पहलू क्या है, वो है एसएससी की साइड से। एसएससी की साइड पे क्या पहलू आता है सर, एसएससी कहता है सर मेरी लायबिलिटी थी 10 लाख की,
मैंने 10 लाख की आउटपुट दी थी, गलती से मेरे अकाउंटेंट ने जीएसटीआर 1 में, जीएसटीआर 1 में टैक्स तो देना नहीं होता, सिर्फ पंचिंग करनी है, गलती से मेरे अकाउंटेंट ने 10 लाख की जगह 1 करोड़ भर दिया, 90 लाख रुपए ऊपर भर दिए। सर इसमें मेरी क्या गलती है? तो यहां पर गैप आ रहा है। अगर ऑफिसर अब सीधा चाहे तो 1 के फाइल होते ही अगर 3B में टैक्स नहीं मिला तो फिर वो जो ऑफिसर है वो सीधा सीधा इसको रिकवरी कर सकता है। तो यहाँ पर कहीं पे एक एसओपी की जरूरत है कि दी ऑफिसर शुड वेट एटलीस्ट टिल नेक्स्ट टू जीएसटीआर 1, क्योंकि मैंने कोई गलती करी है तो मैं अगली बारी ठीक कर दूंगा। तो अगर मैंने अगली बारी ठीक कर दी तो फिर आपकी बात खत्म हो गई, फिर तो आपको 10 लाख दोबारा दिखेंगे मेरे, 1 करोड़ नहीं दिखेगा। मैंने उसके अगली बारी ठीक कर दी तो भी ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति को कम से कम 1-2 महीना तो लगता ही है पुरानी गलती ठीक करने में। पर एक व्यक्ति जिसका 2 महीने तक भी ठीक नहीं हुआ, उसको एक अपॉर्चुनिटी तो आपको देनी चाहिए। यहाँ पे जो थोड़ा सा गलत हो रहा है वो ये हो रहा है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर रिकवरी शुड बी गिवन। So whenever there is a action of recovery which is being initiated, there should a letter which should go from the department to the SSC that your GSTR 1 shows this much of an amount, but corresponding tax has not been paid in 3B, and therefore we are wanting to recover this amount from you. अगर ये नोटिस तो चला जाता इसमें है, बताइए इसमें सर। आपको क्या लगता है जी? आपको ऐसा लगता है कि ये भी फेक इनवॉइसिंग को कंट्रोल करने के लिए है कि कुछ लोग जीएसटीआर 1 में दिखा करके और कर लेते हैं क्या? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड ऑल दिस? भाई अगर ऐसा ही था तो उसको फ्लैग कर सकते थे उस ट्रांजैक्शन को, जहां पर भी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी में मिसमैच है, तो उतना क्रेडिट नहीं अलाउ करते वो। सर मतलब क्रेडिट अलाउ जीएसटीआर 3B के बेसिस पे होगा या जीएसटीआर 1 के बेसिस पे होगा, किस के बेसिस पे होगा? मतलब एक्चुअली मुझे जितना ज्यादा आइडिया नहीं है जीएसटी का, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मतलब लोगों को कईयों को अजीब लग सकता है कि जो जीएसटीआर 1 के बेस पे अलाउ होगा या जीएसटीआर 3। अगर जीएसटीआर 1 के बेस पे अलाउ होना फिर तो फ्लैग कर सकते हैं उस ट्रांजेक्शन को। नहीं गुप्ता सर, आपका सवाल बिल्कुल सही है, बट अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक प्रावधान का जिक्र किया था जो अब गवर्नमेंट अभी लेकर आई है कि अगर आपको आईटीसी चाहिए तो आपके 2A के अंदर एंट्री आनी चाहिए। ठीक है सर। तो क्या हुआ, उससे जीएसटीआर 1 की अहमियत बढ़ गई। अब मुझे क्रेडिट तभी मिलेगा जब आप जीएसटीआर 1 भरेंगे और आपका क्रेडिट मेरे यहाँ पे दिखेगा। ठीक है सर। बट अगर सपोज मैंने आपको टैक्स का इनवॉइस दे दिया और मैंने उसकी टैक्स पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं करी, तो अब जो नया कानून चेंज हुआ उसके हिसाब से आप तो टैक्स का क्रेडिट ले लेंगे, पर मैंने अभी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया। गवर्नमेंट ने अपने आप को कवर करने के लिए ये अमेंडमेंट करी फेक इनवॉइसेस को रोकने के लिए। ये सारे के सारी अमेंडमेंट, हाँ, ये सारी अमेंडमेंट का पर्पज वही है। हाँ। सारी अमेंडमेंट जो है वो आउट ऑफ एक ही डर से है, फेक इनवॉइस। आप इस पूरे एक्ट को अगर मेरे को कहेंगे कि संक्षिप्त में 2 लाइनों में मैं समझाऊं तो मेरा सिर्फ 2 ही इसमें है। गवर्नमेंट ने अपनी टेक्निकल जो फॉल्ट्स थी उनको ठीक करा है और दूसरा अपने फेक इनवॉइसेस को प्लग करा है। सारी अमेंडमेंट इन 2 चीजों के आसपास ही घूम रही है। एक्चुअली जो गवर्नमेंट करना चाहती थी वो तो किया नहीं जी गवर्नमेंट ने। जो 1 2 3 वाली कॉन्सेप्ट थी इनिशियली, अब उसको कंट्रोल करने के लिए अब देखिए वैसे भी हम लोग डिस्कशन भी मतलब अजीब सा हो जाता है आजकल। भाई हम जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 भी मतलब लॉ के पॉइंट्स पे बात नहीं करते, हम फॉर्म्स के हिसाब से बात करने लगे। फॉर्म्स के बिल्कुल हिसाब ठीक से है, क्यों बात करने लगे? इसीलिए करने लगे गवर्नमेंट ने हमें उधर घुमा दिया। बिल्कुल ठीक बात है सर। वैसे डिस्कशन तो लॉ पॉइंट्स पर होना चाहिए विदाउट रेफरिंग टू फॉर्म्स, क्योंकि हर यस। एक आदमी को फॉर्म भी समझ में नहीं आते। भाई फॉर्म तो लड़के भर लेते हैं, हम तो भरते नहीं फॉर्म्स। तो क्या होता है कि एक कॉमन सेंस डेवलप करने के लिए वो उस हिसाब से डिस्कशन होना चाहिए। बट हम डिस्कशन मतलब वी आर फोर्स टू डिस्कस इन दिस फैशन। सर मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। आज की डेट के अंदर जीएसटीएन वो हावी हुआ है बोथ एसएससी पे भी और डिपार्टमेंट पे भी। हाँ बिल्कुल। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा मतलब हूँ। कल फॉर्म से लॉ को चला रहे हैं, जीएसटी फॉर्म से नेटवर्क ही। हाँ, जीएसटी नेटवर्क ही इसको चला रहा है देखा जाए तो बड़ी जीएसटी लॉ को। इसको बड़ी फॉन्डली सभी कहते हैं कि दी हॉर्स इज नॉट पुलिंग द कार्ट, द यस। हाँ कार्ट इज बिफोर द हॉर्स। सो वो गाड़ी कभी बढ़ ही नहीं सकती जहां पे द कार्ट इज बिफोर द हॉर्स, और यही हाँ, प्रॉब्लम आ रही है। बट गवर्नमेंट भी इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही है। मैं इस चीज को थोड़ा सा नेगेटिव ना देखते हुए, प्रॉब्लम है सर, देश में प्रॉब्लम है। एक नया कानून आया है,
जब सबने नया मोबाइल फोन लिया पिछले रिजीम में, तो क्या उसका कभी आईटीसी मिला था? सभी सीएस ने उसके बाद मोबाइल फोन खरीदे, आईफोन खरीदे, बिजनेसमैन ने खूब आईफोन खरीदे, सबको क्रेडिट मिला, अच्छा लगा। इसी तरीके से गुप्ता सर बहुत बड़ा चेंज है ये, लोग अभी अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। पहले जितनी माल ढोने की गाड़ियां होती थी उसके एक्साइज का क्रेडिट कभी नहीं मिलता था। पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा आईटीसी, अगर कोई भी गाड़ी कोई बिजनेसमैन अपने माल ढोने के काम में ले रहा है, उसका पूरा क्रेडिट उसको मिल रहा है। और वो कितना बड़ा क्रेडिट है, 14 लाख 15 लाख की भी अगर गाड़ी की बात करें तो उसमें 5 लाख रुपए का टैक्स अमाउंट होता है। तो क्रेडिट जो है बहुत ह्यूज अमाउंट में बिजनेसमैन के पास फ्लो की है। अब क्योंकि वो फ्लो इतने ह्यूज अमाउंट में करा, मैल प्रैक्टिसेस एकदम बढ़ गई। फेक इनवॉइसिंग, क्यों? सबको वैट के दिनों की आदत थी। 2A 2B के केसेस, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने अराइज इंडिया के केस में जजमेंट दी थी 92G के प्रावधान में, ऑनरेबल जस्टिस खन्ना ने, इतनी ब्यूटीफुली वर्डेड वो जजमेंट थी जिसमें बोनाफाइडी एसएससी और मेलाफाइडी, इन दोनों के बीच का जो फर्क था वो हाई कोर्ट ने उजागर किया था और सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंटल अपील को खारिज कर दिया था। सो हम ये तो नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पे डिसीजन दिया, बट उसने ऑनरेबल हाई कोर्ट को जो डिसीजन था उसके अगेंस्ट की अपील खारिज कर दी। तो ये दौर जो है अभी जीएसटी में शुरू होगा, तब दोबारा से बोनाफाइडी एसएससी और मेलाफाइडी एसएससी, इन दोनों के बीच का फर्क मेरे को लगता है कि ऑनरेबल कोर्ट देखेगी। और फिर जितने बोनाफाइडी एसएससी हैं जिन्होंने आईटीसी एक बोनाफाइडी मैनर में लिया था, जहां डिपार्टमेंट का शो कॉज नोटिस ये नहीं स्टैब्लिश कर पाएगा कि देखिए साहब एसएससी भी मिला हुआ था, एसएससी के पास पूरी इंफॉर्मेशन थी कि ये माल नहीं है, ये केवल एक इनवॉइस है। और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होगा? 90% केसेस में एडमिशन ऑफ दी प्रोपराइटर, जो रिसिपिएंट है या डायरेक्टर, या फिर जिसने सप्लाई करी थी, अगर वो जेल में चला गया, वो सबसे बड़ा कारण बनेगा। उन केसेस के अंदर तो गलती से भी कंटेस्ट नहीं करना चाहिए अनलेस यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज कोर्ट ऑल्सो नो, जब उसको जेल भेज दिया सप्लायर को, तो रिसिपिएंट का आईटीसी कहां से मिल जाएगा? तो केस टू केस को देखिए, सेंसिटिविटी को देखिए, बोनाफाइडी को देखना पड़ेगा। जब इन सब चीजों को आपके सामने रखा जाएगा तब आप डिसाइड करेंगे वेदर इट इज अ गुड केस फॉर आईटीसी और नॉट। और जीएसटी 1 के अंदर भी गवर्नमेंट ने पैरेलल ये कह दिया, अगर आपने कोई भी लायबिलिटी दिखाई है तो हम उसको रिकवर कर लेंगे अगर आपने 3B में नहीं पे करी। बट मैं सिर्फ एक बात ये कहूंगा, यहाँ पे हम भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर थोड़ा सा टाइम दीजिए, किसी से गलती हो सकती है जीएसटी 1 में। मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, 10 लाख दिखाना था, अकाउंटेंट ने 1 करोड़ कर दिया। तो ये थोड़ी है कि गवर्नमेंट 90 लाख रुपए का टैक्स लेने के लिए फटाफट पहुंच जाएगी। 1 महीना दीजिए, पहले उसको एक चिट्ठी दीजिए कि आपने जो है 1 करोड़ का के ऊपर टैक्स दिखाया हुआ है, क्या आपसे रिकवरी की जाए? अगर सामने वाला जवाब नहीं देता है या वो अपनी गलती को एडमिट करता है, रिकवरी इमीडिएटली करिए। बट अगर वो कहता है कि नहीं साहब गलती होगी चढ़ाने में, लीजिए मैं अमेंड कर देता हूं, बट मेरे पास अमेंडमेंट करने का तरीका सिर्फ अगले महीने की जीएसटी 1 है, तो मुझे वेट करना पड़ेगा। तो फिर आपको उस एसएससी को रिलीफ देना पड़ेगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। सो दैट इज दी हम्बल सबमिशन ऑन दिस पॉइंट। और इसी के लाइन में अगली जो चेंज गवर्नमेंट ने करा वो करा प्रोविजनल अटैचमेंट में। जो प्रोविजनल अटैचमेंट होती है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के पास एक पावर है कि वो प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है। और ये पावर जो है वो अभी तक लिमिटेड सेक्शंस पे 61, 62, 63, 67, 73, 74 इन केसेस में गवर्नमेंट इवोक कर सकती थी। इस सेक्शन के अंदर अब चेंज कर दिया गया, इस सेक्शन को इतना वाइड कर दिया कि इसके अंदर पूरे पूरे चैप्टर्स डाल दिए गए। अब कोई भी प्रोसीडिंग, पहले वर्ड था ड्यूरिंग दी पेंडेंसी, मतलब अभी वो प्रोसीडिंग्स कंक्लूड नहीं हुई है, उनकी पेंडेंसी में। अब इन्होंने चेंज करके कर दिया, इफ एनी इंक्वायरी हैज बीन इनिशिएटेड, मतलब शुरू भी हुई है तब भी, अंडर, नॉट अंडर स्पेसिफिक सेक्शन, अंडर चैप्टर्स, चैप्टर 12, चैप्टर 14, चैप्टर 15, चैप्टर 13 जो ऑडिट से रिलेटेड है उसको बाहर कर दिया। असेसमेंट, डिमांड एंड रिकवरी, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, इन तीनों प्रावधानों में, इन तीनों चैप्टर्स में कोई भी इंक्वायरी अगर इनिशिएट हो गई और गवर्नमेंट में कमिश्नर को लगता है कि देयर इज अ नीड टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट रेवेन्यू, देयर कैन बी एन ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट व्हिच कैन बी गिवन टू द एसएससी। और सर प्रोविजनल अटैचमेंट बैंक अकाउंट की भी हो सकती है, सीसी अकाउंट की नहीं हो सकती।
बैंक अकाउंट की भी हो सकती है, प्रॉपर्टी की भी हो सकती है, डेटर्स की भी हो सकती है। सो बहुत माध्यम से ये पावर यूज की जाएगी। अगेन ये जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा कहाँ यूज की जाएगी, ये जीएसटीआर 1 की प्रोसीडिंग्स, जो जहां पे जीएसटीआर 1, सो सभी मेंबर से एक बहुत छोटा सा हम्बल सबमिशन है मेरा, आने वाले टाइम में जीएसटीआर 1 और 3B के बीच में फर्क मत रखिए। अगर गलती से कोई जीएसटीआर 1 गलती से गलत भरी गई, उसकी इमीडिएट एक लेटर जो है जुरिसडिक्शनल ऑफिसर के पास फाइल कर दीजिए। आपके एसएससी पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर अगर आप ये सोचेंगे कि जीएसटीआर 1 लड़के भर रहे हैं, हमें देखने की जरूरत नहीं है, 3B क्लाइंट देख रहा है, हमें देखने की जरूरत नहीं है, नोटिस की भरमार, आज भी अगर मैं सभी के मेंबर से पूछूं तो मेरे ख्याल से हर मेंबर के पास भरमार में नोटिस हैं, चाहे वो इनकम टैक्स से हैं, चाहे जीएसटी से हैं, हर क्लाइंट के पास कुछ ना कुछ किसी रूप में नोटिस पहुंचा हुआ है। सर हमारे कंप्लायंस की क्लैरिटी आने वाले दिनों में, असेसिंग ऑफिसर्स आप सबने देखा इनकम टैक्स में क्या हो गया, फेसलेस सॉरी रेंज, वार्ड्स, इनके दिन चले गए सर। और इनडायरेक्ट टैक्स में भी बहुत धीरे धीरे फेसलेस आ जाएगा। तो क्या काम आएगा, आपका परफेक्शन ऑफ कंप्लायंस एंड योर राइटिंग स्किल्स इन रिस्पॉन्स। दो चीजें आपके काम आएंगी। अगर ये दोनों चीजें आप फोकस करेंगे तो डिमांड्स नोटिस कम होंगे। अदरवाइज जो पहले एक दौर था, पहले प्रैक्टिस का दौर अलग था, तब गलतियों को ठीक करने का भी टाइम काफी मिला करता था। बट अब जैसे जैसे ये सारा सिस्टम एक इंसान से कंप्यूटर के ऊपर जाता जा रहा है, आज की डेट में आप सबके पास 26 ईयर्स के अंदर आपकी टर्नओवर्स तक आ रही हैं जीएसटी की। सर जब पहली बार सबने देखा था तो सबको शॉक लगा था, बिजनेसमैन को भी शॉक लगा था कि अरे ये तो सारी टर्नओवर्स यहाँ पे आ गई। कई मित्रों ने देखा कि वो टर्नओवर्स मैच नहीं कर रही हैं फ्रॉम इनकम टैक्स। सर ये सारे के सारे सवाल अब थोड़े दिनों में, अगले एक साल के अंदर, कंट्री विल बी इनटू अ 360 डिग्री प्रोफाइलिंग ऑफ द एसएससी। कोई भी एसएससी है उसका एक 360 डिग्री प्रोफाइल जीएसटी ऑफिसर के सामने भी और इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने भी खुल जाएगा। ऑफिसर को 10 मिनट में पता चल जाएगा कि कहां कहां इस व्यक्ति ने क्या क्या मेजर खर्चे करे हैं, कहां से इसकी इनकम है, इसके बैंक में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। ये सब चीजें धीरे धीरे, आपने आधार लिंकिंग भी देखी होगी। द डिपार्टमेंट इज फोकस्ड ऑन आधार लिंकिंग ऑफ पैन, आधार लिंकिंग ऑफ जीएसटी नंबर। उसका एक ही कारण है सर, आधार लिंकिंग के बाद द क्वांटम ऑफ ट्रांजैक्शंस कैन बी इजीली ट्रैक्ड। सो जितने भी फेक इनवॉइसेस के केस हुए, मैक्सिमम केसेस जो हैं पार्टनरशिप फर्म्स, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स में हुए थे, कंपनीज में इतने केसेस नहीं हुए हैं सर। प्रोप्राइटरशिप ओवरनाइट बनती है, कंपनी ओवरनाइट नहीं बनती है। कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह के साथ आरओसी की भी फॉर्मेलिटीज है, आरओसी की फॉर्मेलिटीज की कॉस्ट है। सो हर चीज को देखते हुए बहुत प्लानिंग के साथ गवर्नमेंट भी अपने आप को कवर कर रही है। प्रोफेशनल्स को ये ध्यान रखना पड़ेगा, देयर इज अ 360 डिग्री profiling of every SSC which is coming up in the coming days, and therefore the flow of information may be more to the officer than to you, and there are challenges which may be faced by the SSC. Moving on to the next point, the next proposal of the budget this year, pre-deposit has been required in case of an appeal against the detained goods. Section 129 जो डिटेंशन का है, उसके अंदर अगर आपका कोई ऑर्डर पास हो जाता है कि आपका जो ईवे बिल है वो प्रॉपर नहीं है, इसलिए आपको टैक्स और पेनल्टी देनी पड़ेगी। मैं 129 पे अभी थोड़ी देर में आ रहा हूं, बट ये जो चेंज है ये आया है सेक्शन 107 सबसेक्शन 6। वहां पे कहा गया अगर कोई भी डिटेंशन का आपका ऑर्डर है जिसपे आप पे टैक्स और पेनल्टी लगी है, उसके अगेंस्ट अगर आपको कोई भी अपील करनी है तो आपको पेनल्टी का 25% जमा करना पड़ेगा। सबका सवाल आएगा सर टैक्स का क्यों नहीं करना पड़ेगा? सर वो इसलिए नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 129 को भी चेंज कर दिया गवर्नमेंट। सर 129 में क्या चेंज आया? चलिए पहले मैं 129 का चेंज आपसे ले लेता हूँ। सेक्शन 129 को ऑल टुगेदर चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने। पहले प्रावधान था अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं कैरी करने के लिए, अगर वो कन्वेंस के साथ कैरी नहीं है तो व्यक्ति को टैक्स और उस पे एप्लीकेबल 100% पेनल्टी देनी पड़ेगी, इक्विवेलेंट टू 100% ऑफ टैक्स। सो मेरे पे, मैं सामान कैरी कर रहा था 100 रुपए का, 18 रुपए का टैक्स था,
18 रुपए की ही पेनल्टी, तो उसको 18 रुपए टैक्स और 18 रुपए पेनल्टी गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी ट्रक को रिलीज कराने के लिए, राइट सर। अब ये प्रावधान जो है वो चैलेंज किया गया। क्यों चैलेंज किया गया? सेक्शन 129 इज नॉट एन असेसिंग सेक्शन, it is a penal section, and therefore the officer who is at the check post cannot assess the correct tax. To assess a correct tax, you need what? You need the rate, you need the classification, you need the value. तीनों चीजें आपको चाहिए होती हैं। चेक पोस्ट पे खड़ा एक ऑफिसर कितने ट्रक्स की असेसमेंट करेगा? नहीं कर सकता सर। सो जो टैक्स था वो बहुत इजी था चैलेंज करना सेक्शन 129 के अंडर। मैंने पहले भी जितने भी ई वे बिल के सेमिनार्स हुए थे उसमें कहा था जब भी आप 129 ई वे बिल की अपील फाइल करें उसके अंदर आप जरूर चैलेंज करें कि टैक्स कैन नॉट बी इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 129। तो गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर इशू को समझा, उन्होंने 129 को अमेंड कर दिया, उन्होंने वहां से वर्ड टैक्स को डिलीट कर दिया और उन्होंने कहा 200% टाइम्स ऑफ द टैक्स विल बी इम्पोज्ड एज अ पेनल्टी, मीनिंग देयर बाय आप सिर्फ पेनल्टी वहां रख दिया। अब जो ऑफिसर लगाएगा वो केवल पेनल्टी होगा, टैक्स नहीं लगाएगा। सो जो टैक्स के अराउंड डिबेट थी खत्म हो गई और 129 के अंदर पेनल्टी लगाने में कोई कोर्ट उनको खारिज नहीं करेगी, उनको समझ आ गया। सो अब अगर 129 कोई भी ई वे बिल की कमी या इनवॉइस की कमी में आपका कोई भी ट्रक पकड़ा जाएगा, जब बजट पास हो जाएगा उसके बाद उस पर टैक्स और पेनल्टी नहीं लगेगी, केवल पेनल्टी लगेगी 200% की ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स। सो अगर 100 रुपए का सामान था, 18% का टैक्स रेट था, 36 रुपए की पेनल्टी उसके ऊपर लगेगी। अब क्योंकि पेनल्टी का ऑर्डर पास हुआ है तो सेक्शन 107 सब सेक्शन 6 वो भी अमेंड कर दिया गया और उसमें ये चेंज लाया गया कि जो भी अमाउंट पेनल्टी के रूप में लगा है उसका अगर आप 25% जमा करेंगे तो ही आप अपील में जा सकते हैं, नहीं तो आप नहीं जा सकते। मीनिंग देयर बाय जिन लोगों ने ट्रक को छुड़वा लिया अपना 200% पेनल्टी देके और फिर अपील में जा रहे हैं, उनको कोई प्री डिपॉजिट नहीं देना। बट कोई भी व्यक्ति जिसने ट्रक को नहीं छुड़वाया है और वो प्री डिपॉजिट के पेनल्टी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपना जाना चाहता है, उसको 25% प्री डिपॉजिट देना पड़ेगा। So that's a big change in 129 read with section 107 subsection 6. सर एक चेंज और आया है, वो बहुत मेजर चेंज है, दैट इज अंडर सेक्शन 151। सर 151 क्या सेक्शन है? वो पहले उसका टाइटल हुआ करता था पावर टू कलेक्ट स्टैटिस्टिक्स, मतलब गवर्नमेंट ने कुछ स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे करने हैं, उसकी पावर कमिश्नर साहब को दी हुई थी, कमिश्नर ऑफ द बोर्ड, कमिश्नर ऑफ द स्टेट। अब इस सेक्शन को अमेंड कर दिया गया है। अब इस सेक्शन को अमेंड करके क्या कहा गया? सर आप कमिश्नर हैज बीन गिवन वाइड पावर्स, इनॉर्मस पावर्स। सेक्शन को अमेंड करके टाइटल को ही चेंज कर दिया, पावर टू कलेक्ट स्टैटिस्टिक्स से इसको चेंज करके कर दिया पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। नाउ कमिश्नर कैन कॉल एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवन। एंड व्हाट इज द सेक्शन सेइंग? द कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम मे बाय एन ऑर्डर direct any person to furnish information relating to any matter dealt with in connection of the act within such time and in such form and in manner as may be specified therein. तो सर ये सोचिए, कमिश्नर कैन नाउ टेक द इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेलीकॉम अथॉरिटी, कमिश्नर कैन टेक द रिकॉर्ड्स ऑफ एनी इंश्योरेंस डिटेल फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। ये सब पावर्स जो थी उसके पास पहले नहीं थी, अब वो पावर बहुत वाइड तरीके से उसके पास आ गई। एंड सर दिस इज ऑल, एवरीथिंग इज ओनली मेड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस फेक इनवॉइसिंग। फेक इनवॉइसिंग ने इस कानून को इतना कड़क बना दिया है कि अब हर जगह पर सिर्फ पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन, इंफॉर्मेशन कलेक्शन, डिटेलिंग, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। तो इसका तरीका यही है कि हमें भी अपनी कंप्लायंसेस को, अपने डॉक्यूमेंटेशंस को बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा। मैं सभी मेंबर्स को ध्यान दिला दूं, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के किसी भी एसएससी के, सभी मेंबर्स को गुप्ता जी भी टाइम टू टाइम मैं जानता हूं, उन्होंने भी पहले बताया था, किसी भी एसएससी के रिकॉर्ड्स में अपना फोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी नहीं देंगे। कोई भी नोटिस आ रहा है, जा रहा है, आपके फोन नंबर पे ओटीपी नहीं आएगा। प्लीज ध्यान रखिएगा, कल को उस मेंबर का कोई, उस एसएससी का कोई भी डिफॉल्ट हो गया, सीए विल बिकम अ पार्टी टू इट अननेसेसरली।
सो प्लीज कोई भी व्यक्ति अपने ईमेल आईडी को प्लीज डू नॉट से मैं इस क्लाइंट को 25 साल से जानता हूं। सर 25 साल से जानते हैं मान गया, आज कोई ऐसा क्लाइंट है जिसको व्हाट्सएप चलाना ना आता हो, जिसके पास एक हाई एंड मोबाइल फोन ना हो? सर जब बिजनेसमैन सब करता है, ईमेल आईडी टेंडरिंग सब करता है, तो जीएसटी या इनकम टैक्स में अपने ईमेल आईडी और फोन नंबर को क्यों नहीं डलवाता? We should not put our email ID or phone number in any client details. That's a humble submission. अपने सभी टीम मेंबर्स को कहिए उनका भी कोई ईमेल आईडी या फोन नंबर उस क्लाइंट पे नहीं होना चाहिए है। आज चेंज करवा दीजिए, अभी तक नहीं हुआ कोई बात नहीं, आने वाले दिनों के लिए सब क्लीन रहिए। ये छोटी छोटी चीजें होती थी जो पहले भरोसे की होती थी, हर सीए अपने क्लाइंट पे भरोसा करता था। सर वक्त के साथ साथ क्लाइंट्स के फेक इनवॉइसेस बढ़ गए, कई सीएस परेशान हुए, OTPs, email notices, कुछ भी छूट गया, the CA will become a party to this particular thing. Next amendment, before I सर take up इसमें one. एक बात पूछना चाहूंगा, होता सर, क्या है, सीए के पास डॉक्यूमेंट्स तो सारे आ गए, लेकिन गवर्नमेंट के पास उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन है, सीए से ज्यादा इंफॉर्मेशन है। गवर्नमेंट मैंने अपनी तो डाटा माइनिंग कर रही है, जैसे मैंने RFID टैग वाला एग्जांपल दिया। यस भाई सर, सीए के पास ई वे बिल भी है, लॉरी रिसिप्ट भी है, वहां का साइन किया हुआ वो भी सब कुछ है। तो वो सीए उससे ज्यादा, सीए के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो भी डेटा माइनिंग करे या मशीन लर्निंग के थ्रू उन चीजों को देखे। तो वहां सर लैग कर जाता सीए, वो सिर्फ नहीं, डॉक्यूमेंट्स ही देख पाता और डॉक्यूमेंट के अलावा क्या करेगा। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के बियॉन्ड भी जा रही है, तो वहां हम क्या गवर्नमेंट, कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते सर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के बियॉन्ड जाएगी, उनका जो इंफॉर्मेशन बेस है हमसे बहुत बड़ा है। दूसरा, हैं? हाँ। वो एक पर्टिकुलर केस पे फोकस करते हैं, हम अपने 200 300 400 जो भी क्लाइंट्स जिसके पास हैं उन पे फोकस करते हैं, तो हर क्लाइंट को उतना टाइम नहीं मिल पाता है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि टाइम तो देना पड़ेगा, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जैसे गुप्ता जी ने कहा, वो सारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम हमारा नहीं है। हमारे सामने तो जो क्लाइंट लेकर आएगा, जितनी रिकॉर्ड्स लेकर आएगा, उसकी बस प्रॉपर कम्युनिकेशन उससे ले लीजिए, उसके बियॉन्ड हमारा काम नहीं है। उससे डेटा कलेक्ट करके, वी आर नॉट इन्वेस्टिगेटर्स। इट इज अ वेरी ओल्ड सेइंग दैट देयर इज अ डिफरेंस, द ऑडिटर इज नॉट अ ब्लड हाउंड। सो ऑडिटर का रोल हुआ या कंसल्टेंट का रोल हुआ, यू कैन नॉट बिकम अ इन्वेस्टिगेटर स्यू मोटो। आप खुद ही इन्वेस्टिगेटर नहीं बन सकते हर केस के अंदर। अब अगर उसने RFID उस नाके से नहीं गई, तो ये मत सोचिए कि एसएससी गलत है। हो सकता था वहां नीचे की एक पगडंडी थी और ट्रक वाला अपना टोल बचाने के चक्कर में उस पगडंडी से निकाल ले गया। हैं? मुझे नहीं पता उस वक्त ट्रक में और उसमें क्या हुआ, पर अगर कानून में लिखा होता कि कोई टोल टैक्स पे करी हुई इनवॉइस ही आईटीसी के लिए वैलिड होगी, तो मैं पे करवा देता। मैं बस इतना कर सकता था। तो ये ध्यान रखना है कि क्या फैक्ट है सर। मैं ये नहीं कह रहा हर केस में ये चल जाएगा। अगर बोनाफाइडी एसएससी होगा, 100 तरीके होंगे निकलने के। अगर मेलाफाइडी एसएससी होगा तो 100 तरीके होंगे फंसने के। तो ये झगड़ा जो है, नहीं, हम लोग हाँ, क्लाइंट से ये भी लेना शुरू कर दें कि भैया टोल टैक्स की पर्ची अभी दो। अगर टोल नहीं, टैक्स की पर्ची नहीं तो ये एफिडेविट दो कि नीचे से ले गए आप, बिना टोल टैक्स को बाईपास किया आपने। अगर आप ऑडिट कर रहे हैं जीएसटी का, तब तो आपको हाँ, लेना चाहिए। अगर जीएसटी का ऑडिट नहीं कर रहे, तो फिर मेरे हाँ, हिसाब से वो नहीं बनता नहीं है। दूसरा, अगर 2A के अंदर एंट्री आ रही है, बैंकिंग चैनल से पेमेंट गई हुई है और उस माल की स्टॉक रिकॉर्ड्स में बकायदा एंट्री है, तो जब तक कोई इन्वेस्टिगेशन केस नहीं है, इतना रिकॉर्ड बहुत है उस ट्रांजैक्शन को सच मानने के लिए। बट हाँ। अगर नहीं, हम इन्वेस्टिगेशन केस अपने है, जैसे जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन है उसमें ये चीज डलवा दें कि भाई हाँ हाँ, ये सारी चीजें जो है, ये ये जो मैनेजमेंट ने ये देखी है। जितना भी माल है वो टोल से पास हुआ है। सर टोल से पास हुआ या नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात है आपको रिसीव हुआ। गुड्स एंड सर्विसेज आर हाँ, रिसीव्ड बाय द एसएससी। ठीक है ना सर। टोल का तो मैंने बता दिया ना सर, टोल इज ओनली अ चेक। अब दिल्ली के अंदर आने के अंदर कितने सारे टोल नाके सब हैं, और एक ग्रीन टैक्स भी कटता है। हाँ, अगर मैं, चलिए ऑफिसर हूं, आपने मेरे को टोल की रसीद हाँ, तो दिखा दी, अब मैं आपको कह रहा हूँ सर दिल्ली में आप हाँ, ग्रीन टैक्स के बिना तो घुस ही नहीं सकते, मुझे सारी ग्रीन टैक्स की हम्म, पर्चियां हम्म, दीजिए। अब सर अगेन आपने हाँ, इतनी मेहनत करके टोल टैक्स इकट्ठा किया, अब आप कह रहे हो कि गौरव तुम ग्रीन टैक्स मान रहे हो। अब आप अगली बारी हाँ, टोल टैक्स भी ले आए, ग्रीन टैक्स भी ले आए,
पर आप जो है लोहे में डील करते थे, और लोहे की खास बात क्या है, वो जब तक धर्म कांटे पे तोल नहीं होता तब तक उतारा नहीं जाता। अब मैंने हाँ, ऑफिसर चाहिए। को मैं कह रहा हूँ, सर आपने तोल कैसे करा कि आपके पास 100 टन सामान आया? अब फिर गुप्ता जी अटक गए, सर कहां तक पर्चियां इकट्ठी करते रहेगा ऑडिटर? तो मैं ये कह रहा हूँ एक लेवल तक देखेंगे, उसके बाद नहीं। बट हाँ, अगर केस लगता है, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, तो ये एक एक चीज को हमें ध्यान करना पड़ेगा। हमारे पास अगर एक भी प्रूफ है, उस पर्टिकुलर प्रूफ से हम केस को जीत सकते हैं। ठीक है सर, बट बोनाफाइडी एसएससी के लिए लड़ना बनता है। गुप्ता सर आपका म्यूट हो गया है, अगर आप कुछ कह रहे थे। मैंने, मेरा हो गया, आप प्लीज प्रोसीड। हाँ जी। राइट सर, आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट प्रपोजल। इट इज बेसिकली द रिफंड ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई। जो व्यक्ति एक्सपोर्ट करते थे, एससीजेड को सप्लाई करते थे, उनका जो पहले गुड्स जो सप्लाई करते थे, ऑटोमेटिक रिफंड आया करता था। वो अपने शिपिंग बिल की डिटेल अपने जीएसटीआर 1 में डालते थे, आईजीएसटी की पेमेंट करते थे 3B के माध्यम से, और उनका रिफंड ऑटोमेटिकली उनके यहाँ पे क्रेडिट हो जाता था। गवर्नमेंट ने देखा कि रिफंड्स के अंदर भी काफी सारे स्कैम्स हुए, काफी सारे फ्रॉड्स हुए। गवर्नमेंट ने इस चीज को भी प्लग कर दिया बाय अमेंडिंग द एक्ट। सेक्शन 16 of IGST Act has been amended so that the option to export with payment of tax has been closed. Now nobody can export on payment of tax. Everybody will have to export only under LUT and under bond. So without payment of tax, under LUT ही export होगा after the passage of this particular act. So जो automatic refund आता था IGST पेड का एक्सपोर्टर्स को, वो बंद कर दिया गया है। दो खामियां हैं, एक ऑटोमेटिक रिफंड का रूट बंद हो गया, नंबर दो आपको जाकर डिपार्टमेंट से रिफंड लेकर आना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे दिखाने के बाद, टू दी सेटिस्फेक्शन ऑफ दैट ऑफिसर। नंबर तीन, जो तीसरा सबसे बड़ा खामियाजा था, कैपिटल गुड्स का क्रेडिट पहले डायरेक्टली नहीं, कैपिटल गुड्स का रिफंड पहले डायरेक्टली मना था। जो सेक्शन 54 के अंदर रिफंड की डेफिनेशन है, उसमें आईटीसी ऑफ कैपिटल गुड्स नहीं है। तो सभी एक्सपोर्टर्स क्या करते थे, कैपिटल गुड्स का क्रेडिट लेते थे, आउटपुट टैक्स पे करते थे, और आउटपुट टैक्स का उनको रिफंड मिल जाता था। तो इनडायरेक्टली उनको कैपिटल गुड्स का रिफंड मिल जाता था। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने आईजीएसटी पेमेंट के ऊपर एक्सपोर्ट बंद कर दिया, तो आपके पास क्या रूट रह गया? आपके पास रूट रह गया केवल अंडर एलयूटी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो जो रिफंड आएगा उसमें कैपिटल गुड्स का रिफंड आपको नहीं मिलेगा, वो एक्यूमुलेट होता रहेगा। सो ये चीज का थोड़ा सा जो ये 3 पॉइंट्स थे, ये खामियाजा आने वाले दिनों में सभी जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भरना पड़ेगा, स्पेसिफिकली एक्सपोर्टर्स ऑफ गुड्स। सर इसके अलावा मैं कस्टम्स और उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं एक थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे बस एक कस्टम के एक लाइन में खत्म करूं। एलयूटी वाले पॉइंट पर मैं एक बात पूछना चाहूंगा जी, कि सर आप कह रहे हैं कि एलयूटी के अगेंस्ट में इनवॉइसिंग हो रही है, ठीक है ना जी, और हाँ कैपिटल जी, गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो एक्यूमुलेट होता रहेगा, तो वो मिलेगा कब? क्योंकि नहीं मिलेगा उसकी सर। कभी टैक्सेबिलिटी तो आएगी नहीं। अगर उसकी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगा तो इकट्ठा होता रहेगा, और जिस दिन कोई डिमांड आएगी उस दिन उसको यूज करके वो पे करेगा टैक्स की, तो कर सकता है, नहीं तो नहीं, वो इकट्ठा होता रहेगा। ओके अब ये ओके। गवर्नमेंट के आगे रिप्रेजेंटेशन आज से नहीं 3 साल हो गए ये डालते हुए सबको, पर गवर्नमेंट ने कैपिटल गुड्स के ऊपर अभी तक कॉल चेंज नहीं करी। सर कस्टम ड्यूटी के अंदर अगेन जो आप देखेंगे रेट चेंजेस हुए हैं, वो बेसिकली मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए, ध्यान में रखते हुए करे गए हैं। जैसे जो भी बाहर से पीसीबीज वगैरह इंपोर्ट हो रहे थे, उनका बेसिक कस्टम ड्यूटी वगैरह बढ़ा दी गई है। सो ये चीजें कस्टम्स के अंदर थोड़ी चेंज हुई है। आई विल नॉट स्पेंड टाइम ऑन दिस। एक केस लुकिंग इनटू दी पॉसिटी, और मैं मेंबर से कुछ क्वेश्चन 15 मिनट विद द परमिशन ऑफ द चेयर, गुप्ता सर की परमिशन से 15 मिनट में क्वेश्चन आंसर हमेशा लेता हूं, तो मैं लूंगा। एक केस में आप सबकी नॉलेज में डालना चाहूंगा, आज काफी लंबा डिस्कशन बजट पे ही रहा। एक बहुत रीसेंट गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट आया है इन द केस ऑफ हिमानी इंटरमीडिएरीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इसके अंदर जो है कोर्ट ने, ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है। यहां पर इशू क्या था, देयर वाज सीरियस एलिगेशन ऑफ हरासमेंट, कोर्जन, थ्रेट against respondent number 4 and 5 respectively.
मतलब जो ऑफिसर्स जो थे वो गए थे वहां पे क्या नाम है रिकवरी प्रोसीडिंग्स के लिए, तो उन्होंने कोर्जन करके लॉक करके फोर्सफुली सीसीटीवी वगैरह बंद करवा के सारी प्रोसीडिंग्स के अंदर स्टेटमेंट्स लिखवाई, रिकवरी करी। उसके ऊपर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नोटिस इशू करा है कि ये जो केस फाइल हुआ है इसमें अब गवर्नमेंट को क्या कहना है। अभी इसका डिसीजन नहीं आया है, बट मेरा सिंपल पॉइंट यहाँ पे कहने का क्या है, नाउ द बैटल ऑफ कोर्सिव कलेक्शन इज नाउ इन दी हाई कोर्ट। सो अगर कोई जबरन रिकवरीज, कोई जबरन फोर्सफुल स्टेटमेंट्स किसी भी एसएससी के अगेंस्ट होती हैं, he should go to the honorable high court for fighting out his case and to get relief from the respective honorable high courts. And धीरे धीरे सर्च का भी अब गाइडलाइंस, आज टाइम नहीं है, जो गवर्नमेंट है उसने सर्च की गाइडलाइंस भी इशू कर दी हैं सीबीआईसी ने। सो आपको उनको भी पढ़ना चाहिए कि अब सर्च की गाइडलाइंस लिमिटेड ऑफिसर्स किस तरीके से क्या करेंगे। एवरीथिंग इज नाउ बिफोर ऑल ऑफ अस, सो मेंबर्स हैव टू जस्ट कीप देम updated with the new changes as brought in by the government. I think I will put my entire discussion to rest here. Now, with the permission of the chair, please allow me to take the member questions for next 15 minutes before we close the session, sir. बिल्कुल सर, बिल्कुल. So all the members, those whosoever wants to ask the question, they can unmute themselves and ask the question. वरुण जी स्पेशली हमारे आगे रहते हैं, फ्रंट रनर क्वेश्चन पूछने में. तो वरुण जी, आपका कोई सवाल है? घूम रहा है सर दिमाग. घूम रहा है? अच्छा, कोई बात नहीं. इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं ना, वो इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट टू ट्रैक एवरीथिंग. वो एक गजनी पिक्चर आई थी ना, तो उसमें दिमाग उसका हो जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस. तो हमारे बहुत सारे सीएस का भी वो गजनी वाला ही हाल हो रहा है. वो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. वो अभी थोड़े दिन पहले गुप्ता जी एक वो भी आया था ना, छोटा सा एक व्हाट्सएप आया था कि किसी ज्योतिष ने कहा था कि बेटा भगवान इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे. ये थोड़ी पता था कि नोटिफिकेशंस की बात कर रहे थे. नोटिफिकेशंस आएंगे. सर एक ये क्वेश्चन आंसर बॉक्स में पड़ा है. हाँ जी. If a CA gives his mail ID / mobile number at the initial stage for getting registration, how can he change the mail ID mobile number? Initially he gave his mail ID and mobile number, now he wants to change. So what is the procedure? कोर फील्ड अमेंडमेंट के बाद आप कर सकते हैं. कोर फील्ड अमेंडमेंट करने के बाद ओटीपी नए फोन पे चला जाता है और वहां जब वो ओटीपी आप डाल देते हैं तो वो चेंज हो जाता है. उसमें कोई इशू होना नहीं चाहिए. आई थिंक दिस इज वन वेरी सिंपल थिंग व्हिच I have never faced any issue from any member. मैंने खुद तो कभी देखिए, मैं frankly बताऊं, team has done it in many cases, but I have never found this particular problem has never. लगता है कि even वहाँ जो टीम है, जो हेल्प डेस्क है, वो लोग भी हेल्प करते हैं, ऐसी बात नहीं. हमारे स्टाफ भी कई बार फोन करते रहते हैं, they get the answers, ऐसी बात नहीं, वहां से भी आंसर मिल जाता है. If you are stuck somewhere. Yes sir, in this particular case yes. तो मेरे को क्या लगता है सर कि ना हमें 1-2 केस लॉ और देख लेने चाहिए. आई डोंट थिंक देयर आर मेनी क्वेश्चंस. तो ये 2 केस लॉ आप ले लीजिए, जो भी रिसेंट रूलिंग्स हैं, जो आपको लगता है कि वी कैन डिस्कस इन 5-10 मिनट्स. सर एक क्वेश्चन 9C से रिलेटेड है. हाँ बताइए सर. एक्चुअली जो डिपार्टमेंट से डाउनलोड हो रही है रिपोर्ट, उसमें और जो 3B हमने फाइल किया है, जो हमने आईटीसी क्लेम किया है, उसकी फिगर में डिफरेंस आ रहा है. सर कौन से टेबल नंबर की बात कर रहे हैं आप? जो 4A हम देते हैं. हाँ. और डिपार्टमेंट से जो 9 डाउनलोड किया, उनका जो प्री फिल्ड है, उसमें फर्क है. सर उसके अंदर फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि वो जो आ रहा है डाउनलोड करके, वो जीएसटीआर 1 आफ्टर अमेंडमेंट and amendment also up to a particular date, October of subsequent period, वहां तक की अमेंडमेंट उन्होंने ली है. और आप ले रहे हैं जो एग्जैक्ट बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन है क्लाइंट की, तो उसके अंदर डेफिनेटली
फर्क आएगा सर, बट आप अपने वाले वर्जन पे रहिए, इंफॉर्मेशन जो करेक्ट है उसके हिसाब से अपना 9 भरिए और टैक्स को फुलफिल करिए। ओके, थैंक यू। गुप्ता जी मैं लास्ट केस ले लेता हूँ, सिंस वी डोंट हैव मच क्वेश्चंस टुडे। वेरी क्विक क्वेश्चन, वेरी Yes, sir, क्विक। please. हाँ जी। ये डिसीजन अभी एक आया था, दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस एंड दिस इज ओनली अ फॉलो थ्रू ऑफ द ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट इन द केस ऑफ जयम फूड्स। उसी की एक्सटेंशन है। ये केस था पोदरन फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बाय ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट। सर इस पर्टिकुलर केस के अंदर भी एक ही चीज थी कि मियर सस्पिशन ऑफ मिस क्लासिफिकेशन, अगर आपने क्लासिफिकेशन गलत कर दिया, इसका सस्पिशन ऑफिसर को है, इट कैन नॉट बी द बेसिस फॉर डिटेंशन अंडर 129। सस्पिशन ऑफ मिस क्लासिफिकेशन मींस की क्लासिफिकेशन आपके हिसाब से होनी चाहिए थी HSN नंबर लेटर से 5523 में, और उसके हिसाब से होनी चाहिए थी 2223 में। तो दिस कैन नॉट बिकम अ बेसिस फॉर डिटेंशन। It has to be a apparent misclassification under the notification number 1 by 2011. Mere surmises, suspicions cannot become a basis for detention. अब ऑफिसर्स क्या करते हैं, जो नाका होता है, चेक पोस्ट जिसको हम कहते हैं, वहां पे कहते हैं सर आपने अंडर वैल्यूएशन करी हुई है गुड्स की, ये जो लैपटॉप है या ये जो आइटम है ये मुझे पता है मार्केट में इतने रुपए की मिलती है। सर दोस पर्टिकुलर सस्पिशंस कैन नॉट बिकम अ रीजन टू डिटेन दी गुड्स। अगर मेरे ईवे बिल के अंदर जो इंफॉर्मेशन डाली गई थी, अगर वो इंफॉर्मेशन मेरी इनवॉइस से मैच करती है, दी गुड्स कैन नॉट बी डिटेन्ड एट एनी चेक पोस्ट फॉर द वेरी सिंपल रीजन, मैंने जो गवर्नमेंट को डिक्लेयर करना था मैंने कर दिया। अब उसकी वैल्यू में, क्लासिफिकेशन में अगर कोई भी एरर है, तो मेरा असेसिंग ऑफिसर कल को जब भी असेसमेंट करेगा या ऑडिट करेगा, तब उसको पकड़ के मेरे साथ डिस्प्यूट कर सकता है। ड्यूरिंग ट्रांजिट केवल एक ही चीज के ऊपर झगड़ा हो सकता है, या तो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है, नंबर 2 जो डॉक्यूमेंट्स में गुड्स है वो इंसान कैरी नहीं कर रहा, उसके अलावा कैरी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है आई एम कैरिंग स्टिच सूट्स इन माय व्हीकल, और मैं उसके अंदर जो डाल के लिख के जो इनवॉइस रेज करी मैंने, उसमें मैंने लिखा कट पीस ऑफ द टेक्सटाइल या क्लॉथ। तो सर दैट इज अ मिस रिप्रेजेंटेशन, दैट इज नॉट अ केस ऑफ मिस क्लासिफिकेशन, सो द डिस्क्रिप्शन इज ऑल टुगेदर रॉन्ग। सो डिटेंशन के ऊपर प्लीज ये ध्यान रखिएगा। बहुत ही बढ़िया जजमेंट है मद्रास हाई कोर्ट का, जिसमें कमिश्नर को इंस्ट्रक्शंस इशू करने के लिए ऑर्डर किया था। नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, जयम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का केस था ये, ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट का 2 साल पहले का, और इसी के जो फॉल थ्रू है उसमें ये डिसीजन अभी ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट का आया है पोदरन फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में। So I think with this, Gupta ji, we can put. I would like to put rest to the. एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा जी। इसमें क्या होता है, Sir. जैसे शुरू में जीएसटी आया तो मुझे भी ध्यान है, किसी का रेट आइटम का 18 है, किसी का 28 है। एक आदमी 28% पे कर रहा है, दूसरे को देखता है अरे भाई ये तो 18% पे, वो कहता है यार तुम किस तरह से इस आइटम को दिखा रहे हो, वो बाद में उसी आइटम के लिए 18% करने लगा। मतलब जब ये इनिशियल बात है, जब ये जीएसटी आया था तो एक दूसरे के लोग बिलिंग देखते थे, भाई वो भी उसी चीज में डील कर रहा है, मैं भी इसी में डील कर रहा हूँ, वो जो उनका परचेजर है वो भी बताता था कि जी वो तो 18% चार्ज कर रहा है, आप 28% चार्ज कर रहे हो, ये क्या चक्कर है। तो वो भी धीरे धीरे 18 करने लगा। अब जब असेसमेंट आएगी तो ये भी इशू उठ सकते हैं, जी पहले आप 28 करते थे, बाद में क्या ज्ञान प्राप्ति हो गई कि आप 18 पे करने लगे। मैं आपसे सिर्फ उसमें, मैंने आपको याद है मैंने आज ही डिस्कशन के दौरान एक आउटपुट टैक्स का जिक्र किया था, सेक्शन 2 क्लॉज 82 और सेक्शन 49(4) का। अगर आपने कोई भी क्लासिफिकेशन चेंज करी है, आपको डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है करेक्ट क्लासिफिकेशन क्या थी। हो सकता है पहले आप किसी और रेट पे कर रहे थे, आज किसी और रेट पे कर रहे हैं। अगर पहले ज्यादा टैक्स दे दिया कोई बात नहीं, अगर कम दिया तो प्रॉब्लम है। करेक्ट क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो टैक्स बनता है वो लगेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ डोंट गो बाय द मार्केट। मैंने जिक्र जैसे अपने आप डेलिब्रेशन में भी कहा था सर, मोस्ट ऑफ द पीपल दे गो एंड लुक एट द रेट by looking the invoices of other people. They look at the rate by looking at the invoices of other people. Please determine your classification as per yourself and decide your case as per you.
every SSC is a independent SSC, every good supply is a independent good supply. So that's my humble submission. कोई डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो पहले गलत थी अब ठीक हुई हैं, और वो सृष्टि का नियम है सर, हमेशा ठीक होती रहेंगी। एक गौरव जी, इनका सवाल है विनायक कंप्यूटर से कि कई बार हमें पता चलता है कि समटाइम्स वी गेट अवेयर दैट फ्यू क्लाइंट्स आर गेटिंग इनवॉइसेस विदाउट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो एज ए टैक्स रिटर्न असिस्टेंट विल वी बी हेल्ड लायबल? तो आई थिंक दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आंसर्ड। नो, आई थिंक यस सर, ये हमने काफी डिटेल डिस्कशन कर लिया था। हाँ, काफी डिटेल डिस्कस किया आज का, बल्कि जो फोकस पॉइंट था वही फेक इनवॉइसिंग ही था। सर आजकल तो चल वो रहा है, और जो बजट का भी कई चेंजेस आए, नेचुरली बजट इज आल्सो ओरिएंटेड टुवर्ड्स दैट टू कर्ब दोस प्रैक्टिसेस, चाहे वो सेक्शन 16 का आया, सबका फोकस एक था, फेक इनवॉइसेस को हटाओ। एक क्वेश्चन और है अरुण सहगल जी का, इफ एसएससी हैज नॉट डिक्लेयर्ड इज सेल ऑफ वन ऑफ इट्स डिवीजन, मतलब सेल टू डिवीजन हो गया जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3B एंड नाइदर आईटीसी इज यूज्ड, इज इंटरेस्ट पेएबल उस केस में? सर मतलब जो अपने ही डिवीजन को एक सेल की, उसको कहीं भी नहीं दिखाया, जीएसटीआर 1 में भी नहीं दिखाया, जीएसटीआर 3B में भी नहीं दिखाया, और आईटीसी भी नहीं यूज किया। गुप्ता सर, इनका जो सवाल है वो ये है कि मेरे 3 डिवीजन है, एक डिवीजन की डिटेल मैं अपनी रिटर्न्स में डालना भूल गया, तो ना मैंने उसका आईटीसी दिखाया, ना मैंने उसका आउटपुट दिखाया, तो जब मैं उसको अगले महीने डालूंगा तो क्या मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा? मेरा आंसर है बिल्कुल देना पड़ेगा। इट इज नॉट कवर्ड अंडर द प्रोवाइजो, इट इज नॉट कवर्ड अंडर द प्रोवाइजो टू सेक्शन 50 सब सेक्शन 1। इसमें तो आपने एग्जांपल भी दिया 1,90,000 वाला। यस सर। So now this is the time to thank the speaker. It was really a wonderful session, or we really feel enlightened by the depth of deliberations. Time for refreshment also. Refreshment also. Refreshment, yes, definitely. चालू करें वो वाला ओल्ड सिस्टम पे आए। हाँ, आएंगे। देखिए ऐसा है कि वी आर एक्सरसाइजिंग कॉशन। मेरे को लगता है कि हम लोग अभी मार्च तक जो ऑनलाइन पे चलना चाहिए हमारे को। मार्च के बाद हम लोग सोच सकते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं आना चाहते हैं फिजिकल मीटिंग्स में। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा और इसको, और फिर स्पीकर्स भी देखिए, स्पीकर्स भी प्रेफर कर रहे हैं ऑनलाइन मोड। जैसे हमने कपिल गोयल जी को बुलाया, अब कपिल गोयल जी ने बोला भाई ऑनलाइन ही होगा तो मैं आऊंगा, फिजिकल में नहीं आऊंगा। तो ये क्योंकि क्या होता है, स्पीकर का भी टाइम सेव होता है, लेकिन ये है कि स्पीकर के लिए थोड़ा टैक्सिंग भी हो जाता है कि 2 घंटे का मतलब 2 घंटे ही बोलना है। अब वहां पर तो क्या होता है, कुछ बातचीत भी हो जाती है, कुछ हो जाता है बीच में। और यहाँ जो है, यहाँ एक रिकॉर्डिंग भी चल रही है, यहाँ कई सारे इश्यू कर रहे हैं। हाँ, सर जी, फिजिकल मीटिंग में हमारे स्पीकर साहब कोई फरीदाबाद से आते हैं बेचारे, कोई नोएडा से आते हैं, 2-2 घंटे ट्रेवल करके आते हैं, तो दे आर स्पेंडिंग डबल द टाइम। अब वो इतना टाइम में वो 2 मीटिंग एड्रेस कर लेते हैं, तो दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग मोर नॉलेज देन द फिजिकल। हाँ, ये तो है, ठीक बात है, बात तो सही है। तो भारद्वाज जी करेंगे सर, अभी अगले साल से करेंगे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से फिजिकल मीटिंग्स। तो भारद्वाज जी, इट इज अप टू यू फॉर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। अरुण कुमार जी का स्वागत है अपनी मीटिंग में। अभी मैंने देखा है भाई साहब को काफी दिन के बाद। मैं तो रेगुलरली अटेंड करता हूं जी भारद्वाज साहब। अरुण जी रेगुलर हैं, रेगुलर अटेंड करते हैं मीटिंग्स। We are very thankful to Dr. Gupta for his wonderful deliberation on the various topics of GST. सर, आपकी मास्टरी के कायल हैं हम, इतना जबरदस्त तरीके से चीजें क्लियर होती हैं कि भाई खुद पढ़ते हैं तो उलझते ही रह जाते हैं, समझ नहीं आता क्या पढ़ रहे हैं। बट व्हेन वी आर अंडर योर डिस्कशन, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर। बहुत अच्छा लगता है आपको सुन के, एंड हम फ्यूचर में भी आपको कॉल करते रहेंगे। और मेंबर्स आर हाईली बेनिफिटेड बाय योर फ्रूटफुल डिस्कशन। और मैं तो चाहूंगा सर, आप जैसे लोगों को काउंसिल में आना चाहिए। देखिए ऐसा है कि गवर्नमेंट की साइड से भी, गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड अकोमोडेशंस आल्सो।
हाँ एकेडमिशियंस की भी जरूरत है वहां पर, तो आप बाई जैसे चांस लोग अगर आगे आए तो अच्छा ही है। बाई चांस आई एम ए मेंबर ऑफ सेल टैक्स बार एसोसिएशन, तो हमारे को आदेश हुए कि भाई आपको आना है। हमारे 2-3-4 आदमी, तो मैंने गौरव जी को वहां देखा, तो किसी ने कहा कि भाई गौरव जी का ध्यान रखना सर। मगर यार क्यों, मतलब भाई यार क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? गौरव जी को मतलब ध्यान रखने की जरूरत है। मैं तो आया ही उनके लिए हूँ स्पेसिफिकली कि भाई हमारे मतलब इतने सर पढ़े लिखे लोग भी होने चाहिए ना। सारे नेता होंगे तो कैसे काम चलेगा सर किसी भी फॉर्म में? सर वी हैव ऑलवेज बीन दी कंट्रीब्यूटर्स। हमसे जो कंट्रीब्यूशन जिस बिल्कुल फोरम सर, पे बहुत अच्छा। जहां क्लैरिटी पे होगा, वी आर हाँ ऑलवेज हाँ अवेलेबल। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी हाँ ठीक मच। बात है, वी बिल्कुल आर सही ऑल्सो बात है। थैंकफुल टू ऑल द मेंबर्स, क्योंकि मुझे पता है लास्ट डेट है 2 दिन बाद आरओसी की भी, और सब लोग लगे हुए हैं उसके बाद भी। यू हैव स्पेयर्ड योर टाइम टू मेक दिस इवेंट ए सक्सेस। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग अटेंडेंस। So if there is anything else, otherwise should I end the meeting formally? Gupta ji, हाँ जी सर, हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। any more Thank you once announcement? again, Gaurav Gupta ji. Thank you once again. थैंक यू सर। And Thank you, sir. Thank we you, have got everybody. another session scheduled on हाँ, 20th February on 20th direct tax proposals next Saturday. by Kapil ji. हाँ जी, हाँ जी. That intimation will be received by you in your mail ID and WhatsApp also. सर पहले हम ना बजट का सेशन 6 घंटे का करते थे, अब उसको टुकड़ों में करके 3-4 सेमिनारों में कवर करेंगे धीरे धीरे। इट इज द सेकंड वन आई थिंक। हाँ जी, yes, this is the second. Yes. तो we have चलिए जी, arranged 3 थैंक seminars on budget alone this month. ताकि आराम से चीजें डिस्कस हो जाए। 6 घंटे देखिए सुनना भी किसी के लिए पॉसिबल नहीं है एट अ स्ट्रेच, हाँ और 2 घंटे में बजट होता नहीं है कवर पूरी तरह से, ये भी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है गौरव जी, थैंक यू वंस अगेन सर। वी आर Thank you, थैंक टेकिंग यू sir. लीव सर, ऑफ ऑल थैंक द यू मेंबर्स वंस प्लीज। अगेन, थैंक यू।